हेलो, इज आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सबको? हेलो पार्टिसिपेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Actually, I'm very sorry. I think there is some technical issue and the internet is not properly working. Rule 149 is, I am clear about rule 149. If any goods and services available on JAM, then we have to buy all that goods and services only through JAM. Up to 50,000 rupees we can buy from any supplier available on JAM. If value of goods is above 50,000 and is up to 10 lakh rupees, we have to compare prices of at least 3 different manufacturers, and then we have to place order with the lowest bidder. If the value of goods is more than 10 lakh rupees, then it is mandatory to invite bids like other CPP portal or e-portal. We have to invite bids on the JAM and we have to place the order with the lowest bidder. Next. Next is, I am skipping rule 150. We will discuss later. Now, rule 154. Suppose some particular goods or services not available in JAM, then what will be the procedure? If it is on JAM, life will be very easy. We can directly buy from JAM. If some goods and services are not available on JAM, then our first thing is we will get a non-availability certificate from JAM. Then second, then what procedure is to be followed? Then rule 154 comes into picture. Purchase of goods without quotation. If the value of goods is up to 50,000 rupees, then we can purchase without inviting any quotation or bids from any vendor, provided we have to, buyer has to give a certificate that the buyer is personally satisfied that the goods are of requisite quality and specification and have been purchased from a reliable supplier at a reasonable price. It is very, very important to give this certificate because we are not inviting any quotation and we are buying from the supplier of our choice. So that's why it is important. The buyer shall give this certificate. This limit of 50,000 is further relaxed last year by the government for scientific institutions, ministry, education institution, universities, and institutions conducting research and the PhD courses. So for universities and educational institutions who are conducting PG and PhD courses or research or scientific industry like DST, DBT, DSR, this 50,000 limit is last year relaxed to 1 lakh rupees. So now universities can purchase up to 1 lakh rupees of goods without inviting any bids from any supplier of their choice if that particular goods and services is not available on JAM. But this certificate has to be given by the buyer. Only then they can buy from any vendor. Then rule 155. Suppose the value of the goods you want to buy is above 1 lakh rupees in case of university or scientific departments or 50,000 rupees in case of other institution. If particular goods or service is not available in JAM and the estimated value is above 1 lakh rupees, then what procedure is to be followed? Then this rule 155 talks about purchase of goods by purchase committee. If the value of the goods is above 50,000 in case of other institution and 1 lakh in case of universities, educational institution, and it is up to 10 lakh rupees, then on the basis of recommendation of the duly constituted purchase committee having at least 3 members, the institution can purchase the goods from a particular vendor. However, what is important in this rule, there has to be a duly constituted purchase committee. It should have at least three members. The committee has to survey the market, and survey can be through any mode. They can physically survey the market, they can online survey the market, telephonically they can survey the market, and they have to ascertain the reasonability of the price, quality, and specification. And then they have to give a certificate if they are satisfied as a member of the purchase committee. Recommended purchase is of requisite specification, quality, and price at the reasonable market price, and the supplier is the reliable and competent to supply that particular goods and services. It means if any value of the goods is above 50,000 rupees,
and it is up to rupees 5 lakh rupees in case of other institution and 10 lakh rupees in case of educational institution, universities or the research institute. Then up to 10 lakh rupees, they can buy any goods and services on the recommendation of the duly constituted purchase committee. If the purchase committee gives a certificate that the buyer is the reliable and competent, and he is giving the specified goods at the prevailing market price. तो फर्स्ट थिंग, हाँ जी सर, इसमें जैम का नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेशन ही चाहिएगा। ये अब हम जितने प्रोविजन की बात कर रहे हैं, अगर जैम पे अवेलेबल नहीं है तो आपका पहला स्टेप है कि जैम से आप नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लें। उसके बाद अब आपको सोचना है कि अब मेरे जैम पे अवेलेबल नहीं है, मुझे क्या करना है। फर्स्ट मैंडेटरी है, मतलब पहले आपको कोई भी चीज प्रोक्योर करनी है, आपका पहला स्टेप है आप जैम पे सर्च करें। अगर वो जैम पे अवेलेबल है, आपको जैम से परचेज करना है। अगर वो आप जैम पे अवेलेबल नहीं है, आप नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट निकाल लीजिए जैम से। उसके बाद अब हमारे अगले रूल आते हैं। 154 कहता है कि अप टू 50,000 रुपीज किसी से भी परचेज कर लीजिए, यूनिवर्सिटी के केस में 1 लाख रुपए। उससे ऊपर है अप टू 5 लाख रुपीज अदर इंस्टीट्यूशंस एंड अप टू 10 लाख रुपीज फॉर यूनिवर्सिटी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। तो 10 लाख रुपीज तक वो अंडर रूल 155 परचेज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द पर्टिकुलर परचेज कमेटी। तो पहला तो स्टेप आपका कुछ भी प्रोक्योर करना है तो आपको पहले सबसे पहले जैम खोल के जैम पे सर्च करना है कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि वो मैंडेटरी है जैम के थ्रू परचेज करना। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, rule 158. We are talking about these rules because if suppose the value is about 10 lakh rupees, the next process is inviting bids. So 154 up to 50,000 rupees, 155 through purchase committee. Now, if value of goods is more than 10 lakh rupees, then what will happen? Then we have to invite bids. So these rules will come into play then. First is purchase of goods by inviting bids. So except by market survey or with inviting without position, departments can procure goods by following the method of obtaining bids. It is mandatory that all tender inquiries or tender document should be published on the CPV portal, and if the institution has their own website, then on their website also. Then rule 160 says is again important. It says that it is mandatory for the department to receive all bids through e-procurement portal only. There is no system of getting any physical bids. All bids should be e-bids. Next, advertised tender inquiry. Now we have seen if the goods costing is up to 1 lakh rupees, we can buy from any vendor. It is up to 10 lakh, above 1 lakh, but up to 10 lakh rupees, it is through purchase committee on the recommendation of the purchase committee by surveying the market. What will happen if the value of goods is more than 10 lakh rupees? Advertised tendering, we have to follow the bidding system. Again, bidding system will be two part. One is advertised tender inquiry, second is limited tender inquiry. Rule 161 talks about the advertised tender inquiry. If the estimated value of the goods is more than 50 lakh rupees, then we have to follow the advertised tender inquiry. In this case, advertisement has to be given on the CPV portal as well as JAM portal. And the institution making the procurement, they have to submit, they have to publish their advertisement on their own website also. Newspaper. Now, there is no requirement for publishing in newspaper. Now, CPP and JAM portal, it is mandatory to publish on CPP JAM. There is no requirement to publish in newspapers. Before GFR 2017, it was newspaper. Now, there is no requirement. If institution want to publish, it is their own wish. They want to publish, they feel, they want to give much wider publicity or something. Otherwise, CPV portal and JAM is enough. It gives wide publicity for every tender. Then tender document should also be published on their own website as well as CPV portal so that bidders can download the tender document from the website, and complete web address has to be given. Minimum time for submission of bid in case of advertiser inquiry is 3 weeks. But if we expect some bids from abroad also, some companies from other countries will also participate, then minimum time should be at least 4 weeks. Next. However, if the estimated value of goods is up to rupees 50 lakhs only, it is more than 10 lakhs, but up to 50 lakhs, then we can follow the limited tender inquiry. In limited tender inquiry, again,
the advertisement has to be published on CPV portal and website also. But in this case, we can also send the bidding document by speed post to the registered supplier. Who are the registered supplier? Rule 150 talks about the registration of suppliers. पीछे break करें. और पीछे. 150 talks about the registration of supplier. Suppose some goods and services are not available on JAM, but we regularly require those services or those goods. Then what will happen? Every time we'll go for bidding, it will take a lot of time. You will invite technical bid, you will open technical bid, then we will open financial bid and finalize. Then to simplify this procedure, Rule 150 was introduced. It is for registration of supplier. If some goods and services are regularly required, then the institution can register the supplier by following a transparent procedure. They have to publish their advertisement on their website and the CPV portal, and they can register the particular suppliers. The suppliers can be registered for a period of 1 year to 3 years, and when the limited tender inquiry will come for a particular good, the value when the goods value is less than 50,000 rupees, then they can go for limited tender inquiry by sending the bidding document only to the registered supplier. But it is important that supplier should be registered throughout the year. Anybody who wants to be registered at any time, then registration should be open, so that if somebody is not participated in a particular tender, then they can participate in the next tender. It is not that you will open only for a particular period, now it is open for register and it is closed. Registration should be open throughout the year. It should be in a transparent manner. Anybody who wants to register and meet the conditions and the terms and conditions of the tender document, they can participate and get registered with the institution. Another important thing is the list of these registered suppliers should always be available on the website, so that anybody can see that they are registered and they will get the limited tender inquiry bidding document whenever institution buy any goods up to rupees 50,000 rupees. It is important in Rule 162 limited tender inquiry that number of bids should be at least 3. It should not be less than 3. 162. Number of supplier in limited tender inquiry should be more than 3. There is no such restriction in advertised and tender inquiry. But in limited tender inquiry, it should be at least 3. And in case of limited tender inquiry, bidding document should be sent, and we can send directly by speed post, registered post, courier, email to all our registered suppliers who can submit their bids. Now, for procurement, I think I should summarize. It is mandatory first to buy goods and services from JAM if they are available on JAM. If goods and services is not available on JAM, the next step is to first get the non-availability certificate, then follow the next step. If the value of goods is up to 50,000 rupees in case of other institution and up to 1 lakh rupees in case of universities or educational institution, research institution, that you can buy from any vendor without inviting any quotation on the basis of a certificate given by the buyer that the vendor is reliable and competent to supply the specified goods at a market price, reasonable market price. If the value is above 1 lakh rupees and up to 10 lakh rupees, procurement can be done on the basis of recommendation of the purchase committee. The purchase committee has to be duly constituted. At least there has to be minimum 3 members. The purchase committee will survey the market and they will give a certificate. Then the buyers are reliable, competent, and the goods are as per our specification and they are supplying at the prevailing market price. If it is above 10 lakh rupees, but up to 50 lakh rupees, then we have to go for limited tender inquiry under Rule 162. But if value is above 50 lakh rupees, then we have to go for advertised tender inquiry by publishing our tender document on the CPV portal, JAM, and our own website. Then it is open, and anybody can participate, whether it is registered with the institution or not registered with the institution. So this is basically summary of the procurement of goods. Anybody any question? So they can please feel free to ask for procurement of goods. Anybody wants to answer any question? Sir, I have one question, sir.
For the goods above 10 lakhs, still we have to first check in the GEM for the availability. After that, only should we go for e-procurement? No, boss. If first step is GEM, if you want to buy anything of any value, whether it's 1 rupees or 1 crore rupees or 100 crore rupees, first you have to search on the GEM. If that particular good or service is available on GEM, you have to purchase through GEM only. If it is not available on GEM, only then you will follow the other rules. Only then CPV portal will come into picture. Hello. Hello. I'm Yes, sir. clear? Yes, sir. हाँ जी. अगर जेम पे अवेलेबल है तो आपको जेम से ही परचेस करना है, सीपीयू पोर्टल की आपके ऑप्शन नहीं है. अगर जेम पे अवेलेबल नहीं है, ओनली देन आप सीपीयू पोर्टल से बिड इनवाइट कर सकते हैं. Okay, sir. Thank you. Anybody, any question on procurement? No, sir, understood. Okay, thank you. We'll go to next rule. Rule 163. It talks about two-bit system. Basically, if we feel the item are very technical or they're complex projects or something, then we can invite bid in two-bit system. This is mainly for when we are inviting bids, whether it is on GEM or it is on CPP portal. So we can follow two-bit system. One is technical bid, other is financial bid. So first the technical bids are opened, and whosoever qualified in the technical bid, only then the second stage financial bids of technically qualified bidders will be opened, and usually tender is awarded to the lowest bidder. Next. Rule 166 talks about the single tender inquiry. Single tender inquiry is rarely used, and it is not always advisable to purchase through single tender inquiry. It has to be used only in special circumstances. Which are the special circumstances? Once either it is of emergency, natural disaster, or some very emergency, we don't have any time and we have no other option, only then we should go for tender inquiry, single tender inquiry. Or it is in our knowledge that only a particular company or particular manufacturer is making that product or services. That product is not available anywhere else, only then we can go for single tender inquiry. Third, suppose we are buying any spare parts for our scientific equipment, and in our knowledge, only that particular company provides the spare parts, or spare parts of particular original equipment manufacturer is only compatible with our equipment. Only then we will go for single tender inquiry. So single tender inquiry is useful in very limited cases, either in case of emergency or for compatibility. We want to for standardization of machinery or spare parts we want to buy from a particular source, or when we are fully aware this is the only company, this is the only manufacturer who provide this product and services, only then we can go for single tender inquiry. But while using this single tender inquiry rule, a proprietary article certificate has to be provided by the buyer, who will certify all these things, why they are buying from the single tender inquiry and they are not procuring or they are not inviting any bids, or they are not going for any comparison with that. Again, this is to be followed only when goods are not available on GEM. If goods are available in GEM, then you have to follow GEM. But in case of emergency, suppose GEM is showing delivery period is 10 days and you urgently require tomorrow or day after tomorrow, then you have to record and give detailed justification in writing. What is the reason? What is the emergency? You are going for single tender inquiry. Sir, what is the financial limitation for this, sir? अगेन इसके लिए कोई फाइनेंशियल लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक इमरजेंट प्रोविजन है जब आपकी कोई इमरजेंसी है, और वो इमरजेंसी आपको भी पता है कि कब होगी, और आपको ऑडिट को भी, देखिए ऑडिट सबसे पहले आते ही इसी तरह की चीजें देखता है. आप कोई भी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं. आप कह सकते हैं नहीं कल हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे, हमें आज ही पता चला, या आप ये नहीं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कल मेरा कॉन्फ्रेंस है मुझे आज पता चला. अगर आप एक कॉन्फ्रेंस है तो डेफिनेटली आप उसकी प्रिपरेशन पिछले 1 महीने से 2 महीने से 4 महीने से या 15 दिन से कर रहे होंगे. तो ये आपको बहुत लॉजिकली सोचना है, क्योंकि इस चीज के ऊपर ऑडिट को कन्विंस करना आसान नहीं होता, स्पेशली इमरजेंसी के केसेस में.
ये हो सकता है कि आप स्पेयर पार्ट्स परचेज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट के, तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से ही परचेज कर रहे हैं। सपोज मेरे को एक हिताची का इक्विपमेंट है, मैं हिताची के ही से ही कंपनी से परचेज कर रहा हूँ स्पेयर पार्ट्स, तो बहुत जेन्युइन चीज है कि मैं ओरिजिनल पार्ट्स यूज करना चाहता हूँ। मेरा मारुति का व्हीकल है, मैं उसे मारुति की स्पेयर पार्ट्स परचेज करना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं कंपनी से परचेज कर रहा हूँ, ओईएम जिसे हम कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से, तो शायद मैं इसमें परचेज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी डीलर से परचेज कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक से ज्यादा डीलर हो सकते हैं, तो मुझे बिडिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें भी आपको ये देखना है कि आप ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहे हैं या उसके डीलर से कर रहे हैं। और अगर डीलर कर रहे हैं तो क्या एक से ज्यादा डीलर अवेलेबल है आपकी सिटी में, तो फिर आप सिंगल टेंडर इंक्वायरी पे नहीं जा सकते। फिर आपको बिड इनवाइट करनी पड़ेगी अपने डीलर से। तो सिंगल Okay, sir. टेंडरिंग बहुत लिमिटेड केसेस में यूज होता है, और ऑडिट को कन्विंस करना भी आसान नहीं होता। तो जब एक्चुअल में इमरजेंसी हो या आपको पता हो कि एक पर्टिकुलर सोर्स में ही अवेलेबल है, तभी सिंगल टेंडर इंक्वायरी यूज करना है, वरना सिंगल टेंडर इंक्वायरी हमें अवॉइड करना है। Okay, sir. Thank you, sir. पीएससी बेसिकली सर्टिफिकेट ही है, तो बायर बायर को सर्टिफिकेट देना है कि वो क्यों परचेस कर रहा है। उसे बताना पड़ेगा कि मेरी नॉलेज में ये पर्टिकुलर सप्लायर ये जो इक्विपमेंट बनाता है कहीं और अवेलेबल नहीं है। या फिर उसे कहना पड़ेगा कि ये मैंने ओरिजिनल इक्विपमेंट इससे परचेस किया था, इस पर्टिकुलर कंपनी से, और मुझे ये खराब हो गया, उसके स्पेयर पार्ट्स परचेस करने हैं, और ये पर्टिकुलर कंपनी ही इसके स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड कराती है या वो कंपेटेबल है इस इक्विपमेंट में। तो इसलिए वो पीएससी वो बायर ही देता है, वो बायर बिल के साथ अटैच करके देगा, तभी फाइनेंस उस बिल को पास करेगा। तो ये प्रोप्राइटरी आर्टिकलशिप सर्टिफिकेट बायर को देना होता है। कई बार बायर जो है उससे वेंडर से भी रिक्वेस्ट करते हैं, तो वेंडर भी सर्टिफाई करके ये सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चर वर्ल्ड में हम ही है, या हमारा इसके ऊपर पेटेंट है, या हमारा इसके ऊपर कॉपीराइट है, तो ये कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता। या हमने एक पर्टिकुलर कंपनी को एशिया में या आपकी कंट्री में हमने इन्हीं को सिर्फ ऑथराइज किया हुआ है कि यही प्रोवाइड करेंगे और कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, तो उस केस में आप उससे कर सकते हैं। सपोज एक इंपोर्टेड इक्विपमेंट है आपका, यहाँ पे इंडिया में सिर्फ एक ही वेंडर है। अब आप अगर इंडिया में है और वो इंडियन रुपीज में सप्लाई कर रहा है, तो जरूरी नहीं है आपको इंडिया से बाहर फॉरेन करेंसी में ही आपको परचेज करना है या आपको लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करना है। वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर भी है। तो उसका एक दूसरा अल्टरनेटिव होता है, वो कंपनी कहती है हमारे इंडिया में यही एक रिप्रेजेंटेटिव है जो डील करता है सारे इक्विपमेंट में, और हम इसी को ऑथराइज कर रहे हैं कि वो आपको सप्लाई करेगा। तो वो प्रोप्राइटरी सर्टिफिकेट बायर को इशू करना है, लेकिन वो वेंडर से भी रिक्वेस्ट करते हैं, तो वेंडर के पास भी अगर कोई सर्टिफिकेट होता है, स्पेशली अगर वो पेटेंटेड गुड्स है या कॉपीराइट है उसके ऊपर, तो वो सप्लाई कर देता है। तो वो बिल के साथ उन्हें अटैच करके देना होता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। वेरिफिकेशन का कोई मामला ऐसे आता है, कोई बना के दे देता है, तो हम लोगों के पास क्या तरीका रहेगा इसको चेक करने का? ये जितने भी रूल्स हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, सबसे पहला होता है लॉजिकल थिंकिंग। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि क्या जो ये कह रहा है क्या हो सकता है। और आज के टाइम में, इंटरनेट के टाइम में, जब हर किसी के हाथ में फोन है और गूगल है, तो अगर आप चाहें तो आप बहुत कुछ सर्च करके पता लगा सकते हैं। ये शायद कुछ मिनटों का काम होगा कि जो प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट दिया है वो कितना सही है या नहीं है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इंटरनेट का, गूगल का इस्तेमाल कर सकता है और ये वेरीफाई कर सकता है कि किसी ने झूठा पीएससी तो नहीं दे दिया या आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। एप्पल, अगर आप एप्पल का लैपटॉप कहोगे तो एप्पल ही बनाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। आप लैपटॉप तो परचेज कर सकते हो, आप डेस्कटॉप परचेज कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते मेरे को सिर्फ आई मैक ही लेना है, मुझे सिर्फ आईफोन लेना है। दूसरे फोन से भी वैसी ही आवाज आती है, उसमें भी फोटो खिंचती है। जब गवर्नमेंट का पैसा इन्वॉल्व होता है तो आपको ये देखना होता है कि वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, और जिसकी रिक्वायरमेंट है वो आपका दूसरे से भी फुलफिल हो रहा है। तो कोई जरूरत नहीं है आपको, अगर आपका काम मारुति से चल रहा है, मारुति सियाज से, तो आपको बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट मनी है तो आपको पब्लिक मनी को पब्लिक मनी के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से ही खर्च करना है। तो पीएससी को भी देखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये आप अगर लॉजिकली अपना माइंड अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्पेयर पार्ट है, तो मैं ये मारुति गाड़ी खराब हुई है, मैंने मारुति से स्पेयर पार्ट ले लिया, या मैंने इक्विपमेंट है। आप उससे कह सकते हैं बायर से कि मुझे बता दो ओरिजिनली आपने इक्विपमेंट किससे खरीदा था, वो आपको बिल की कॉपी भी दिखा सकता है। फिर ये तो इक्विपमेंट आपका एक एसेट है, उसके वो एसेट रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं, आपको पता चलेगा कि किसने सप्लाई किया था, उसकी कॉस्ट क्या थी। अगर उसी ने सप्लाई किया तो इक्विपमेंट वही स्पेयर पार्ट दे रहा है, तो आप पीएससी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऑडिट भी एक्सेप्ट करेगा उससे। जिससे आपने इक्विपमेंट लिया उससे आप स्पेयर पार्ट ले रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं उसमें। और इमरजेंसी में ले रहे हैं तो इमरजेंसी का तो जस्टिफिकेशन जो है वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि इमरजेंसी क्यों अराइज हुई, और आप क्यों नहीं आप प्रोसीजर फॉलो कर पा रहे, क्यों नहीं आप जैम से ले पा रहे, क्यों आप कोई और मेथड नहीं कर पा रहे, क्यों आप बिड इनवाइट नहीं कर पा रहे। तो आपको डिटेल जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, सिर्फ अपने को कन्विंस करने के लिए नहीं, ट्रांसपेरेंसी के लिए नहीं, बल्कि ऑडिट को भी दिखाने के लिए कि क्या इमरजेंसी थी, वो इमरजेंसी कैसे अराइज हुई, और आपने
उस इमरजेंसी में भी क्या बेस्ट मेथड ट्रांसपेरेंट वे में आपने कैसे प्रिक्योर किया, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पूरा जीएफआर इसके ऊपर है। जीएफआर का इंटेंट ही यही है, इंटेंट और स्पिरिट जो है वो जीएफआर की तरफ यही है कि आप ट्रांसपेरेंट वे में काम करें, फेयरनेस से काम करें, रीजनेबलनेस हो, और जितने भी हमने रूल की बात की सब में रीजनेबिलिटी सर्टिफिकेट के ऊपर जोर दिया गया है। इसलिए जो भी बायर है, अगर गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है, 1 लाख रुपए तक अलाउ कर दिया कि किसी भी से भी परचेज कर लो, तो ये सोच के दिया है कि वो आप सर्टिफाई करोगे, तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की आ जाती है कि वो बायर सर्टिफाई करेंगे। नेक्स्ट rule 170 talks about the bid security. This is applicable only when we are inviting bids for the procurement. If we are purchasing directly without any bids, either through purchase committee or by comparison method, then bid security is not required. However, if we are inviting bids from the against the tender, then it is mandatory we will get bid security between 2 to 5% from the bidder, so that bidder at a later stage cannot alter its bid or cannot withdraw from the bidding process. Because it will, again, you have to follow the entire process again. So to restrict the bidder from altering the bid or withdrawing the bid security, you have to get the bid security 2 to 5% from every bidder except MSMEs and the startups. Everybody has to provide. Bid security can be in the form of fixed deposit, bank guarantee, FDRs. It can be in any form, but it has to be obtained normally with the financial bid. Next, performance security. This is again we are required to get the performance security of about 3 to 5% to ensure the due performance of the contract. Suppose we purchase any equipment and they provide 1 year guarantee, then it is important to service that guarantee. We will take the performance security, so that later on, if they refuse to provide any service or they don't able to provide it, so at least we have some security in our hand which we can encash it or use it for our repair and maintenance or anything. So to ensure the due performance of the contract, performance securities have to obtain, which is 3 to 5%, and it has to be valid for a minimum of 60 days beyond the date of completion of the obligation. Is suppose warranty is for 2 years, then the validity of the performance will be 2 years plus 60 days. So it is necessary to get performance security. While getting performance security, we can return the bid security to the bidder. Next. Now rule 172, it talks about the advance payment. Usually there is no need for making any advance payment. We will make payment only after getting the product or services. However, sometimes some companies or some vendors insist for advance payment, especially in case of maintenance contract or in case of complex works contracts like fabrication contracts or turnkey projects, etc. So usually we should not release any advance payment. However, if insisted by the some supplier, then advance payment can be released subject to the limits provided in the section. Next. If somebody insists, then we can release up to 30% of the contract value to a private company. If the contract is awarded to some central or state government agency or PSUs, then we can give advance up to 40%. In case of maintenance contract, advance payment can be given for up to 6 months. Again, these limits are prescribed, but these can be relaxed with the concurrence of the financial advisor of the ministries of the or the institution. It is also possible you can insist that vendor should submit the bank guarantee to safeguard your money. So it is always advisable either not to release any advance payment, or if it is insisted by the buyer, then we should ask for the bank guarantee from the buyer before releasing any advance payment. Rule 173, again, this is, you can say, the last rule of the procurement of goods. It talks about the transparency, competitiveness, fairness,
elimination of arbitrariness and in the procurement process. Like I said earlier also, the entire general financial rules are based on these fundamental rules only. Again, the same things are repeated again. All procurement should be in a transparent and competitive manner. It should be fair manner. Description should be clear. It should not be unduly restrictive. It should be clearly specified, the quantity specification. Then all eligibility terms and conditions like past experience, qualification, technical capability, manufacturing facilities, it has to be clearly specified in the tender document. However, it should not be unduly restrictive. It should not give benefit to any particular manufacturer or particular vendor. So these are the basically fundamental rules for procurement of goods and services. Next. Rule 177. Now we are coming about the procurement of services. We talked about procurement of goods. In procurement of goods, we have seen the JAM, then we saw the without quotation, then through purchase committee and through limited tender inquiry and then tender inquiry. Now it is consulting services, consulting and then non-consulting services. It is about procurement of services. What is consulting services? It can be anything: management consultancy, communication, advisory, project-related consultancy services, feasibility studies, engineering services, anything. Next. How to procure the services? The rule 183 talks about the identification of the sources. If the value of the estimated cost of the consulting services is up to 50 lakh rupees, then we can prepare the list of consultant on the basis of formal and informal inquiries from different departments, ministries. In case of universities, we can go from other universities, IITs, IIMs, Chamber of Industry and Commerce Association. We can prepare a list of consultants who provide particular type of consulting. Suppose we require any project consultancy, we can ask this institution, even we can go for yellow pages or something, and we can prepare a list of consultants if the estimated value of our services is up to 50 lakh rupees. But if the value of our services is more than 50 lakh rupees, then we have to follow the advertised tender inquiry. In that case, an expression of interest has to be invited in the form of advertised tender inquiry, and it has to be published on JAM as well as CPV portal. If institution has their own website, then the advertisement should also be published on the website of the institution. Then we have to prepare the terms of references, and we have to prepare the bid document for inviting the proposals from the consultant. On the basis of response received from the interested parties, as we saw above, on the basis of identification sources, we will invite the bids. The proposals from the consultant usually in the two bid system only, technical bids and financial bids. First, technical bids will be opened, and the consultants who meet our technical eligibility, their financial bids will be opened, and usually the work is awarded to the lowest bidder. Non-consultancy services, again, is services other than consulting. It can be anything like maintenance contracts, hiring of vehicle, security, housekeeping, or very specialized services like drilling, satellite imagery, mapping, etc. So mainly in universities, we are using it for security, housekeeping, hiring of vehicles, maintenance of equipments, maintenance of photocopiers, these kind of services. Again, the same kind of sources, identification of sources, we can invite. It can be on the formal and informal inquiries from the other ministries, universities, other educational institutions, IITs, IIMs, websites, yellow pages. We can invite source inquiry from the different sources. Next. Again here, if the value is up to 50 lakh rupees, then limited tender inquiry procedure can be followed. Again, like limited tender inquiry, the number of contractors should be more than 3. It should not be less than 3. It always be more than 3, 4 or something.
If it is more than 50 lakh rupees, then again we have to go for advertised tender inquiry. We have to invite the bids, mainly in two bid system. First we open the technical bids and we open the financial bids, and the work is awarded to the lowest bidder. Advertisement inquiry, it is mandatory to publish on JAM and CPP portal. It's like procurement of goods and services also, advertised tender inquiry, it has to be published on JAM and CPP and their own website also. Now procurement of goods and services is over. Anybody have any answer? So please ask for any question on procurement of goods and services, so that we'll move to our next section. Anybody? Any question? Participant, now the session is open for discussion. आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं. Any question on procurement of goods and services? तो पहले ये होता था कि हम एक पैनलमेंट ऑफ वेंडर्स कर दिया करते थे. हाँ. तो क्या आज भी वो सिस्टम है? बिल्कुल वो सिस्टम आज भी वो सिस्टम अवेलेबल है और यूनिवर्सिटी फॉलो भी कर रही है उसे. वो बेसिकली कौन कौन से उसमें कर रहे हैं अभी यूनिवर्सिटी में मैंने देखा अभी तो प्रिंटिंग के लिए हम कर रहे हैं, प्रिंटिंग वेंडिंग के लिए. लेकिन हम कोई भी ऐसी सर्विसेज जो हमें रेगुलरली बार बार चाहिए और जो जेम पे अवेलेबल नहीं है, पहली चीज तो जेम पे अवेलेबल नहीं होनी चाहिए. अगर जेम पे अवेलेबल है तो जेम से लेना है. लेकिन अगर जेम पे नहीं है लेकिन आपको सर्विसेज रेगुलरली चाहिए तो आप उतने रजिस्ट्रेशन ऑफ वेंडर कर सकते हैं. रूल 150 ऑफ जीएफआर अलाउ करता है कि आप उन वेंडर्स को रजिस्टर कर लें एक बार, और जिससे कि आपको बार बार टेक्निकल बिड ना कॉल करनी पड़े. आप डायरेक्टली फाइनेंशियल बिड इनवाइट कर सकते हैं. मेनली उन सर्विसेज के लिए जहां पे आपको लिमिटेड टेंडर फॉलो करना है. अगर आपकी टोटल वैल्यू ऑफ सर्विस है लेस देन 50 लाख रुपीज तो आप उन्हें रजिस्टर कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप रजिस्ट्रेशन पूरे साल आपका ओपन होना चाहिए. कोई भी वेंडर जब चाहे जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा हो वो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करे तो आप उसे रजिस्ट्रेशन करें. इन बिटवीन वंस द लिस्ट हैज बीन फाइनलाइज्ड उसके बाद वो लिस्ट कभी फाइनलाइज नहीं होगी. जो फाइनलाइज होती जा रही है वो ओपन है, तो आप उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट डालेंगे. वेबसाइट पे हमेशा वो लिस्ट अवेलेबल रहेगी और कोई वेंडर कभी भी अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई कर सकता है. इन बिटवीन टेंडर के नहीं करेगा. आपने लिमिटेड टेंडर जिसको भेजा है आप उसी को एक्सेप्ट करेंगे. लेकिन पूरे साल ओपन रहेगा ऐसा नहीं है आपने एक महीने के लिए ओपन कर दिया और उसके बाद आपने बंद कर दिया हम अगले साल ओपन करेंगे, ऐसा नहीं होता. मैक्सिमम वैलिडिटी भी कुछ है? एक से 3 साल तक के लिए आप उन्हें रजिस्टर कर सकते हैं. जब तक वो आपको एलिजिबिलिटी मीट करेंगे आप उन्हें रजिस्टर कर सकते हैं. अगर 3 साल बाद उन्हें फिर रजिस्टर होना है वो दोबारा फ्रेश अप्लाई करेंगे और आप उन्हें फ्रेश रजिस्टर कर सकते हैं. कोई नया अप्लाई करना चाहे जो आपका एलिजिबिलिटी मीट करता है आप उसे कभी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट आपके लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में वो भी पार्टिसिपेट. आपने कभी मान लिया हम प्रिंटिंग के लिए करेंगे. हाँ. तो प्रिंटिंग के लिए जैसे मान लीजिए प्रिंटिंग टाइम एंड अगेन करवाना है तो इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. हाँ. तो इस केस में क्या मतलब हम जो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी हम इनवाइट करेंगे तो इनको मतलब हम लेटर भेज देंगे? इनको आप लेटर, स्पीड पोस्ट, ईमेल कुछ भी कर सकते हैं. आप अपने वेबसाइट और सीपीपी पोर्टल के ऊपर भी इनवाइट करेंगे. रेट कॉन्ट्रैक्ट है सब कुछ करके रख सकते हैं इसके साथ. रेट कॉन्ट्रैक्ट अबॉलिश हो गया. रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसीलिए उन्होंने प्रोविजन दिया है. तो आप जैम से लीजिए या आप फिर इस तरह रजिस्ट्रेशन सप्लाई लीजिए. तो अब रेट कॉन्ट्रैक्ट इवन भी इस केस में मतलब ये होगी जो रजिस्ट्रेशन ऑफ वेंडर है मान वो है हमने पैनल कर लिया मतलब उनका भी कोई रेट नहीं है, वो भी लिमिटेड टेंडर में ही अप्लाई करेंगे. वो रेट उसी में अप्लाई करेंगे. आपने सिर्फ एक तरीके से उन्हें टेक्निकली क्वालिफाई करके आपने टूल बना लिया अपना, जिससे कि आपको बार बार टेक्निकल बिड इनवाइट ना करने पड़े. आपको हाँ तो लिमिटेड टेंडर आपको भेजना है. आपको लिमिटेड टेंडर भेजना है, उनसे सीधे फाइनेंशियल बिड इनवाइट करनी है. आपको अपना स्कोप, अपनी रिक्वायरमेंट, अपने स्कोप ऑफ वर्क बताना है. वो आपको फाइनेंशियल बिड सबमिट करेंगे. फाइनेंशियल बिड ओपन कीजिए और वर्क अवार्ड कर दीजिए उन्हें. तो वो सिस्टम अभी भी अवेलेबल है. रूल 150 जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर अलाउ करता है. हेलो. हाँ जी. हेलो. जी प्लीज. हाँ सर, क्या सीपीपी पोर्टल अभी भी चालू है क्या आपका ईडीयू में? हाँ सीपीपी पोर्टल. हाँ बिल्कुल. इन विच केस वी मूव टू द सीपीपी पोर्टल सर? अगर हमारा जैम पे प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल नहीं है और वैल्यू मेरी 10 लाख रुपए से ऊपर है तो मुझे सीपीपी जैम पे जाना पड़ेगा. मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है. इफ लेस देन 10 लाख तो सो लेस देन 10 लाख होगा तो मैं उसके परचेज कमेटी के थ्रू कर लूंगा मार्केट सर्वे करके. नहीं, इन दैट केस वी कैन आल्सो यूज सीपीपी पोर्टल ना. वो तो आपकी मर्जी है. अगर आप गवर्नमेंट ने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी है, अगर आप उसे यूज नहीं करना चाहते आप सीपीपी पोर्टल पर कभी भी जा सकते हैं. कोई मना नहीं कर रहा आपको. अगर आप परचेज कमेटी यूज नहीं करना चाहते, आप 50,000 से ऊपर पे भी आप सीपीपी पोर्टल पे चले जाइए, कोई मना नहीं कर रहा. ओके. इट इज टोटली अप टू यू. One more thing, sir.
there is a committee, this we call SOGEM, subcommittee of the GEM. This is mainly in the case of ministries where we are purchasing the goods available on GEM, but we purchase outside from outside. So there is a subcommittee who allows to purchase from outside GEM in the specific case like scientific instrument and all. वो चाहे उसमें हो भी तब भी हम खरीद सकते हैं क्या DU में कुछ ऐसा है? नहीं जी, ऐसा ना कोई रूल है, ना मैंने ऐसा कहीं पे पढ़ा कि जेम पे अवेलेबल है तो आप बाहर से खरीद सकते हैं। वो सिर्फ नहीं सर, इमरजेंसी के वो सिर्फ No, no, no. इमरजेंसी के केस में होता है। और नहीं किसी सर, भी आप अगर वेबसाइट में चेक करेंगे ना एससीओ जेम कमेटी इस ऑन जेम, तो जेम के अंदर भी GFR के अंदर भी दिया हुआ है जेम एससीओ जेम के बारे में कुछ स्पेसिफिक एरिया। अगर जेम पे अवेलेबल है तो जेम के बाहर क्यों परचेज करेंगे हम? कमेटी को ये दिया हुआ है ना, स्पेसिफिक ब्रांड, जैसे ब्रॉडकास्टिंग के लिए कुछ इक्विपमेंट होते हैं वो जेम में तो अवेलेबल है, बट दे आर नॉट एज पर द मार्क जो चाहिए होता है वो नहीं है। कैमरे आपके वहाँ कैमरे हैं लेकिन वो उस मार्क के नहीं है। बट तो आप जेम पे बिडिंग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन अवेलेबल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर ने अलाउड किया हुआ। आप एक बार एससीओ जेम का चेक कर लेना प्लीज सर। देखिए DU में हमारे ऐसी कोई एग्जम्पशन नहीं है, ना हमें कोई अलाउ किया हुआ मिनिस्ट्री ने। एससीओ जेम हाँ हम एक बार देख लेंगे, लेकिन हाँ। अभी तक जो हमारे DU में इस तरह का कोई तो हमारे ना एग्जम्पशन है, ना हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, हमें ऐसी कोई एग्जम्पशन नहीं है। इस बारे में लाइट किया है तो हम एक बार चेक कर लेंगे। हाँ, एससीओ जेम एक बार चेक कीजिएगा, सबके लिए अवेलेबल है वो फॉर ऑल इन ओनली इन द स्पेसिफिक केस। जी सर, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेरी है? चलिए, तो बिफोर वी मूव फॉर द नेक्स्ट सेशन, वी विल गो फॉर द 10 minutes break, then we will restart our welcome back participants. Now we are going to resume the session. हाँ जी, we have discussed mainly about the procurement of goods and services. Now we will move to other important provisions of the general financial rules, which are not only important but also will find the place in our audit report on many of these items, like physical verification of asset. So what rule 213(1) says? Fixed assets shall be maintained in fixed asset trace format, and they should be verified at least once in a year. So if you've seen any audit report, then usually every auditor comments whether we have verified our fixed assets, library books, consumables every year or not. So it is very, very important. You will ensure that physical assets, fixed assets should be verified at least once in a year. And if on verification, if any discrepancy is found, it should be properly either investigated if we feel there is some loss or there is some theft, and it should be brought into account, or it should be written off. Then otherwise it should be verified and it should be recorded in the asset register if physical verification has been taken out at a particular date. So first is physical verification of fixed assets. Rule 213(2) talks about the verification of the consumable. Like fixed assets, a physical verification of all consumable items and materials should also be undertaken at least once in a year. And again, if there is any discrepancy, it should be recorded and it should be thoroughly investigated, or is there any loss, then it has to be properly accounted for after taking the approval of the competent authority. Next is Rule 215. It's talked about the physical verification of the library books. What it says, complete physical verification of books has to be done every year in case the library having not more than volume of 20,000. If the volume is less than 20,000, it is mandatory to have complete verification of the books every year. For library having more than 20,000 volume but up to 50,000 volume, such verification should be done once in a 3 year. So if it's less than 20,000 every year, it above 20 but up to 50, once in a 3 year. But if the volume is more than 50,000, then sample verification has to be carried out at an interval of not more than 3 years if the volume is more than 50,000. In case such variation reveals some unusual and unreasonable shortages, then complete verification has to be done. So it talks about basically 3 rules. One,
complete verification, if total volume is less than 20,000. Above 20,000, we have to 50,000 once in a 3 year. But if volume is more than 50,000, then sample verification should be done at least once in a 3 year. And if any unusual shortage or unreasonable shortages are found, then complete verification has to be done. Rule 230 talks about the recurring grant and non-recurring grant. This is mainly terms used by University Grants Commission while releasing grant, or ministry while releasing grant to the institutions. Recurring grant is one which is released periodically to the organization for the same purpose. So these are called the recurring grant. Non-recurring grant is, this is one-time release for a specific purpose, like for construction of building, for purchase of capital goods. But non-recurring grant can also be released in installment. It is not it is released only in single installment. But non-recurring grant is only for a specific period and has to be utilized in a specific time manner. So while sanctioning non-recurring grant, normally granting institutions, grantor will specify the time limit within which the non-recurring grant has to be utilized. Recurring grant is one which we regularly get from our funding agency. Rule 230 subsection 8 talks about the interest on grant. It says it is mandatory that all interest or earnings against the grant should be necessarily remitted to the Consolidated Fund of India. Although from last few years, government had stopped releasing grant in the commercial banks. Earlier, we are getting grants in our commercial bank and we are earning interest on that particular grant. From last few years, government has implemented treasury single account and we are not getting any interest from the Reserve Bank of India. So now these days interest component is very, very less, or in case of some institutions, there may not be any interest at all on the grants. But if we earn any interest on the grant, it has to be mandatorily deposited with the Consolidated Fund of India. It cannot be adjusted with any advances or any expenditure. Rule 235, it talks about the accounts of the grantee institution. So any organization who is receiving grant from the government, they are required to maintain the accounts of the government grant, and they are also required to submit the audited accounts to the concerned nodal ministry. So when we will talk about the annual accounts, we have seen in also GFR. Hello, I'm audible now? Hello. Hello. Yes, sir. Okay, thank you so much. Sorry, actually there is some technical issue. Today we are facing some internet issue. So why it is disconnected. So now we talks about the rule 235 of the GFR. It says every organization who is receiving grant from the government, it is mandatory for them to maintain their accounts and furnish audited accounts to the concerned nodal ministry. Like universities, we are submitting accounts to the Ministry of Education for laying before both the houses of the Parliament. So it is mandatory for any organization who is receiving grant to maintain their accounts in the specified format. 236 talks about the audit of the accounts. Again, the accounts of the grantee institution shall be open for inspection by the Controller and Auditor General of India, as well as by the Principal Accounts Officer of the concerned ministry or department. So our accounts are not only required to be audited by the CAG, but they are also open for inspection by the Ministry of Education. If internal audit of Ministry of Education wants, they can also audit the annual accounts of the universities. So it is mandatory to maintain account. It is also open for inspection by not only CAG, but also by the Principal Accounts Office or internal audit wing of the concerned ministry.
Rule 236 again says ki if we are getting grant of not less than rupees 25 lakh rupees and our expenditure is not less than 75% of the expenditure, then it is also again audited by the CAG. It is mandatory to be audited by CAG. Agar if we are also getting grant of not less than 1 crore rupees, then also our accounts to be audited by CAG. There is also a provision that once an account is audited by CAG, it will be audited for the next 2 years continuously, whether we will receive any grant or not. So if we are getting grant of rupees more than 1 crore rupees or about 25 lakh rupees, which is also more than 75% of our expenditure, our accounts will be audited by the CAG. In Delhi University, all our accounts are audited by CAG every year because we are getting sufficient grants for all our expenditure from the ministry. If our accounts are not audited by CAG, then it can be audited by any chartered accountant as per the choice of the organization. Now, this is again one of the most important rule, Rule 237, which prescribes the timeline for submission of annual accounts. What Rule 237 says? It says the audited and authenticated account of the organization has to be submitted to the office of the CAG, and audit should be commenced by 30th of June. It means before 30th of June, our accounts has to be got approved by in case of university, by the Finance Committee, Executive Council, and it has to be submitted to the office of the CAG, as well as audit shall commence before 30th of June. The SAR has to be issued by the office of the CAG by 31st of October, and before 31st of December, the annual accounts as well as annual report has to be submitted to the nodal ministry, which is Ministry of Education in our case, for laying it before both the houses of Parliament. This rule is very, very important because now these days, Standing Committee of Parliament has taken a very serious view of delay in annual accounts, and every year they call the Vice Chancellor of the university if there is a delay. So every institution has to ensure that they should submit their accounts for auditing to the office of CAG before 30th of June. And after getting SAR, they should immediately get it approved from the statutory bodies and submitted to the ministry before 31st of December. This is very, very important. Otherwise, it will be again problematic. Ministry or Parliament will call the Vice Chancellor and ask for reason for delay in submission of annual accounts. So it is not only mandatory for granting institution to maintain accounts, but to get it audited from the CAG and submitted to the ministry following before both the houses of Parliament. So these rules are also very, very important. Next. Rule 238. It talks about the utilization certificate. It says every institution who is receiving grant, they are required to submit a utilization certificate of utilization of the grant for the purpose it was sanctioned in accordance with Form 12A of the General Financial Rules. So every year we are required to submit the utilization certificate, once a provisional certificate, and again once after accounts is audited, we are again required to submit the audited utilization certificate to our funding agency, which is UGC. So this has to be submitted every year. It is mandatory. Now there are many miscellaneous small subjects which are important and also covered under GFR. One is about the service book. Rule 288 says service book maintained by the establishment, because in university establishment branch is maintaining the service book. It has to be verified every year. Then service book shall be maintained in duplicate. First copy shall be retained by the head of the office, and the second copy should be given to the government servant for safe custody. In case original will be misplaced, so at least concerned employee has a copy of their service book. So it is mandatory to maintain service book. It is mandatory. It should be verified every year. Third, it should be maintained in duplicate. One copy will remain with the institution, and second copy shall be given to the government servant for safe custody. So Rule 228 talks about service book, and it is again because it's a part of GFR, so it is mandatory to follow. Then Rule 292 talks about the LTC claims. If some advance is drawn, then LTC claim has to be submitted within 30 days from the date of return. If no advance is drawn, it has to be submitted within 60 days from the date of return.
If it is not done, then employee can be asked to return the entire amount to the institution. So it has to be ensured that every employee should submit their LTC claim within the due date. 293 talks about the due date for overtime allowance. Normally, overtime allowance should also be submitted within 60 days from the due date. Due date is the first of the next working day in first day of the next month. So if for the month of we are claiming for the month of February, then it has to be submitted within 60 days. That is about first 2nd June. Although the GFR has prescribed the timelines for claiming overtime and arrears and LTC, but they have also given a provision that time-barred claim can also be entertained by the competent authority if they satisfied that claimant was prevented from submitting the claim because of circumstances beyond his control. If it is established, employee can in a position to establish that there was genuine reason for not submitting the bills, so competent authority can relax the time period and time-barred claim can be entertained and amount can be released to the employee. Thank you. Now, any question on GFRs? Or somebody has any question on annual accounts, so we can also pick up annual account. In GFRs, there are slight provisions about financial year, about period of accounts, mandatory provision for maintaining accounts, audited by CAG, timelines for submitting annual accounts. So accounts are not only essential, but mandatory also as per GFR. So it is not key, it is institutions who will whether to prepare the accounts or not. It is not our personal money, he will maintain any account or not. Every institution has to maintain their accounts, get it audited by CAG, and has to submit to the ministries for laying before both the houses of the parliament. If anybody have any question on GFR, then please ask. सर आपने बोला कि क्या ना सीएजी से ऑडिट करना जरूरी है, लेकिन सीएजी हम लोगों को टाइम नहीं देता कई बार। फिर तो आप बहुत लकी हैं। अगर ऐसा है तो चाहते तो हम भी हैं कि हमें टाइम ना दे। अगर वो नहीं देते तो ठीक है, उनकी विषय है, लेकिन जीएफआर में प्रोविजन है कि वो ऑडिट के लिए ओपन है। अगर सीएजी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी काफी कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका सीएजी रेगुलर ऑडिट नहीं, हर साल ऑडिट नहीं करता, वहां पे भी वो कभी 3 साल में कभी 5 साल में आके ऑडिट करते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी ऑडिट किया है। हाँ जी, मेरा ऑडिट तो असल में किया उन्होंने सर। हाँ मेरे हर यहाँ साल तो नहीं, हाँ मैं कह रहा हूँ करते नहीं, हर साल नहीं करते क्योंकि उनके पास भी थोड़ा स्टाफ क्रंच रहता है, तो कॉलेजेस का वो नहीं करते, लेकिन जहां तक मुझे पता है यूनिवर्सिटीज का तो सबका करते हैं। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनका तो हर साल ऑडिट होता है। तो यूनिवर्सिटी स्थिति के में भी क्या, ऐसी नहीं स्थिति तो में क्या करें सर? नहीं तो ऐसी स्थिति में आपको सीए से ऑडिट कराना है, आपको अकाउंट्स तो मेंटेन करने ही है। आपको यस सर, यस सर, यस। तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और आप अपनी किसी चार्ट अकाउंटेंट फर्म को एंगेज कीजिए, गवर्निंग बॉडी के अप्रूवल से या आपकी फाइनेंस कमेटी जो है उसके अप्रूवल से कीजिए, और सीए से ऑडिट करा के अपनी फंडिंग एजेंसी को अकाउंट दीजिए। आप अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं सीएजी के ऑफिस में, अगर वो डेप्यूट करते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं डेप्यूट करते तो उसमें एटलीस्ट इंस्टीट्यूशन का कोई फॉल्ट नहीं है, एज लॉन्ग एज बिल्कुल सर, स्टैच्यूटरी ऑडिट तो हर साल ही होता है हम लोगों का। हाँ तो ठीक है, अगर सर्टिफिकेशन ऑडिट सीएजी से होता है। नहीं वो नहीं होता सर, किससे वो होता नहीं है? होता सर। वो पूरे 7-8 साल में एक बार ही आ जाएंगे, 4-5 साल में एक बार आ जाएंगे, वो ऐसे ही करते हैं। तो आपको ऑडिट फिर सीए से ही होता होगा ना, आपके जो अकाउंट हाँ सर्टिफाई होते होंगे। हाँ जी, वो तो सर हो जाते हैं, वो मैंडेटरी जो ऑडिट होता है ना हर साल, वो तो हो जाता है सीए से। तो बस ठीक है, आप लोग लकी हैं, आप बचे हुए हैं। सीएजी आगे कोई रिवार्ड तो देगा नहीं, देखो सीएजी की ऑडिट होगा तो वो ऑब्जेक्शन ही निकलेंगे जिसका जवाब देना मुश्किल होगा। तो आप जी सर, लेकिन सर्टिफाई हो जाता है सर, क्या कि हम लोग क्या ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। देखिए जी, अगर आप सब कुछ एज पर रूल्स कर रहे हैं तो आपको कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि बेकार के पंगों से बचे हुए हैं। और अगर आपकी फंडिंग एजेंसी इंसिस्ट नहीं कर रही, आपको ग्रांट कहाँ से आती है? यूजीसी से? यूजीसी से सर। हाँ तो अगर यूजीसी भी इंसिस्ट नहीं कर रही तो ठीक है, आपके पार्लियामेंट में भी ले नहीं होते होंगे, इसलिए आप लोग बचे हुए हैं।
अगर वरना अगर जरा भी लेट हो और आपके पार्लियामेंट में जाने ना अकाउंट, तो आपके भी प्रिंसिपल को या कहाँ से आप कौन से इंस्टीट्यूशन से? श्यामलाल कॉलेज से सर। श्यामल कॉलेज से? फिर तो आप बचे हुए हैं। आपका अगर अभी तो आप किया है सर, 22 तक का कर, 22 कब तक का तक? करके जा चुके हैं सर वो लोग सीएजी वाले सर। और 22 तक मैं का लास्ट नहीं लास्ट लास्ट टाइम कह रहा है 2022 तक किया हुआ है मैं। हाँ हाँ, जी, तो हाँ जी। यूनिवर्सिटी में तो हर साल 2-3 ऑडिट होते हैं ना, या तो हमेशा ही बैठे रहते हैं, 4 महीने तो ऑडिट, सीएजी की ऑडिट टीम बैठी रहती है यहाँ पे। अकाउंट से डिले होते ही जी सर, जी सर। बुला लिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी को भी और वाइस चांसलर को भी। तो यहाँ पे तो तलवार टंगी जी रहती सर। है हम लोग। आप लोग कॉलेज बचे हुए हैं अभी काफी, तो एंजॉय कीजिए इस पीरियड को जब तक बचे हुए हैं। पता नहीं कब मैंडेटरी कर दे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। किसी का अकाउंट्स पे कोई इशू है तो भी पूछ सकते हैं, जीएफआर पे कुछ है तो जीएफआर पे भी पूछ सकते हैं। मैं अकाउंट स्पेशली इसलिए टेकअप नहीं कर रहा क्योंकि अकाउंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आसान हो जाएगा, और आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप पूछिए, किसी के भी क्वेश्चन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक्रूवल सिस्टम पे, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर, कैश बेसिस के ऊपर, कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। मेनली देखिए 3 टाइप की अकाउंटिंग होती है, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो बेसिकली वी आर प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। तो इट इज मेनली टू सी whether the institution has earned the profit or the surplus or they have incurred losses, or to see the financial position through balance sheet. Cost accounting is basically to ascertain the cost of various products and services. It is mainly used in the manufacturing companies. Cost accounting is not used in service industry or in educational institution. Third is the management accounting. Management accounting is basically a combination of financial accounting and cost accounting. It helps management in taking the policy decisions, how to fix the prices of their particular product, or whether they want to plan a strategic acquisition or they want to take some other important decision. So management accounting is a combination of financial accounting and cost accounting, which is helps in decision making, planning and controlling of the various operations. Normally on 2 types of accounting is done. One is cash basis, other is accrual basis. Cash basis is we prepare the account on the basis when actually cash is received or payment is made. But in accrual accounting, revenues and costs are recognized in the period in which they are incurred, rather than when cash is received or not. Like our financial year is ending on 31st of March. If suppose for any expenditure for March is paid in April, suppose electricity bill of March is paid in April 25. So in case of cash accounting, it will be part of the next financial year because the payment is made in the month of April. But in case of accrual accounting, it will be part of expenditure of the current financial year because the provision is made for the expenditure for the month of March. So this is the basically difference between cash accounting and accrual accounting. Cash accounting, in cash accounting, expenditure is recognized when actual payment is made. But in accrual accounting, it is depend upon the period in which they occur rather than cash paid or not. That's now nobody has any question on anything. जी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट किसी की कोई क्वेरी है? मेरे ख्याल से 2-3 लोग तो फाइनेंस में कर ही रहे हैं। अपने वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, सबसे पहले हमारे डॉक्टर संजय ध्यानी जी ने किया है, तो सर आप कुछ पूछना चाहते हैं संजय जी? Namaskar, sir. No, it was quite clear, sir. It was very, clear presentation, and everything was almost clear. And we are actually doing that, in fact. So, no query from my side, actually. बादल जी? नमस्कार सर, बहुत अच्छा सेशन था सर। अच्छा मुझे तब लगेगा ना जब आपके क्वेश्चंस और आएंगे। जितने क्वेश्चन आते हैं मुझे तो मजा आता है जब
बहुत इंटरेक्टिव पार्टिसिपेंट्स हो, और खासकर अगर ऑफलाइन हो तो। ऑनलाइन में मुझे इतना मजा आता नहीं है, क्योंकि एक देखिए सबसे इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग पार्ट, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, जितना पार्टिसिपेंट को सीखने को मिलता है ना, उससे ज्यादा शायद जो ट्रेनर है उसे सीखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सर सारी तो एक चीजें। रिक्वेस्ट है सर कि फाइनेंस से रिलेटेड का जो ट्रेनिंग है सर वो एक ऑफलाइन मोड में ही कराया जाए सर। हमने तो यही सोचा था कि सब ऑफलाइन में आएंगे, लेकिन कोई आया ही नहीं। सर तो हमें भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं तो हमारी तो दिली ख्वाहिश यही होती है कि भाई सब लोग आए, आपस में इंटरेक्शन भी होगा, मिलना जुलना भी हो जाएगा, और हमारे यहाँ तो गेस्ट हाउस की फैसिलिटीज भी है, कोई सर दिक्कत हमारे नहीं। एफओ साहब भी हैं सर लाइन पे ही सर। हाँ, वो मैं ज्ञानी देख ही रहा सर। हूँ, अभी मैंने आगे से पूछा। तो आपने कभी फाइनेंस में किया बादल जी या नहीं? काम किया सर फाइनेंस में भी। फाइनेंस में किया आपने? जी सर जी सर। Actually, sir, timing of this workshop was actually this financial year ending. So that's why physically it was not possible, in fact. तो अभी हुआ क्या, अदरवाइज हम लोग ऑफलाइन मोड में एग्जैक्टली ज्यादा एनरिचिंग होता है एक्सपीरियंस, और उसमें थोड़ा क्वेरीज करने का भी एक अलग ही वो रहता है। लेकिन अभी चूंकि मार्च एंडिंग चल रहा था तो इस वजह से थोड़ा ऑफलाइन पॉसिबल नहीं था सर। तो लेकिन ठीक है, इस ऑनलाइन मोड में भी काफी कुछ नई चीजें सीखने को तो मिल ही रही हैं। नहीं, फाइनेंशियल ईयर में तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। फाइनेंस वालों को तो पता है मार्च कितना इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत सर हेक्टिक होता वही है। सुबह से थाउजेंड्स ऑफ फाइल, सुबह से वही प्रोसेस करने में इतना टाइम लग जाता है। बिल्कुल भी अप्रिशिएट कि आप फिर भी टाइम निकाल के अटेंड कर रहे हैं। और मैडम, आप कुछ पूछना चाहती हैं? हरिमाला मैम? It is No, clear, sir, sir. it's clear. No, sir, it's clear. ओके। और हमारे अतुल जी हैं श्यामलाल कॉलेज से। अतुल जी? मेरे से मुझे लगता है कोई स्पेसिफिक क्वेरी नहीं है किसी पार्टिसिपेंट की। चलिए, थैंक यू सो मच तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड अटेंडिंग दिस। नहीं सर, थैंकफुल तो हमें होना चाहिए Thank कि you. जैसे ज्ञानी जी ने बताया कि फाइनेंस वालों को तो टाइम निकालना ही अपने आप में जो है आज के टाइम में जो है बहुत ज्यादा वो है, और आपने कम से कम 2 सेशन हमारे लिए निकाला, इसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू जैसन, थैंक यू सो मच। Thank थैंक you, यू sir. एवरीबॉडी। Thank you, थैंक यू सर। तो अभी हमारा थोड़ा टाइम है, बीच में हमारा सेशन जो है अभी नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट होगा इट विल बी विद इन 15 to 20 मिनट्स। तो कोई और कुछ अपने व्यूज वगैरह को शेयर करना चाह रहा है इन बिटवीन? संदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, कुछ नहीं अब है तक के सर। सेशन के बारे में अब तो देखिए भाई, 2 दिन की मुलाकात और रह गई है, वेडनेसडे हो ही गया है। हैं? आपको बार बार एक ही चेहरा नहीं देखना पड़ेगा कि कहाँ जहाँ साहब जो है सुबह 2:15 पे पहुंच जाते हैं और कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, मीनाक्षी मैडम आ जाते हैं, कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देती हैं। नहीं सर, नहीं सर हम नहीं, तो बहुत आपके अच्छा सर। साथ एक्चुअली ही ना रहते हैं नेक्स्ट सर। टाइम आप ऑन ऑफलाइन में तो हम अटेंड करेंगे सर, डेफिनेटली। बिल्कुल, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। देखिए, मैंने बताया ना कि भाई जैसे लीडरशिप स्किल की हम बात करते हैं, हर एक सेशन हमारा चलता है, हम लीडरशिप के बारे में बात भी करते हैं, तो उसमें पर्सनल इंटरेक्शन भी बहुत काम करता है। हाँ ठीक है ना, क्योंकि हाँ सर, हाँ अगर आप सारी चीजें देखेंगे तो हम बात करते हैं जब लीडरशिप की, अगर आप, मैं फिर वही जो हमारे सरदार जी आए थे हमारे, जो उसमें उन्होंने क्या बताया कि आप आए, आपने कहा है तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, है सबको धमका दिया, ये कर दिया, तो उस तरह से हम काम कर ही नहीं पाते हैं। तो हाँ एक सर। संबलनेस जो होनी चाहिए, एक जो पर्सनल रिलेशन होता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं, और अगर साथ में इंटरेक्शन हो जाए, हम फिजिकल वे में प्रेजेंट हो, तो मेरे ख्याल से उसका एक अलग ही जो एक्सपीरियंस होता है। तो ज्ञानी जी सर ने बताया कि भाई एक तो मार्च क्लोजिंग का बड़ा जो है प्रेशर रहता है, स्पेशली जो फाइनेंस के लोग रहते हैं, और आजकल तो जो हमारा नया रेगुलेशंस आ गया है कि भाई पहले तो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पैसा पड़ा रह जाता था कि इट वाज योर लिबर्टी कि भाई इसको यूज इन द नेक्स्ट ईयर, लेकिन अब तो 31 मार्च को नहीं हुआ तो नहीं हुआ, द ग्रांट दैट यू विल गेट दिस ईयर वो भी आपका जो है नेक्स्ट ईयर में रिमूव हो जाएगा कि भाई आपने यूटिलाइज ही नहीं किया, इट मींस कि देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। तो और एक सर ये अब दिक्कत मैं तो, आपको बताऊं, अब तो 31 मार्च भी नहीं रह गया है। अब इनफैक्ट हो क्या गया है, पीएफएमएस पोर्टल पे
मार्च फर्स्ट वीक से ही वो इतना स्लो हो जाता है कि यू कांट बुक, यू आर इट इज रियली इम्पॉसिबल टू बुक एनी एक्सपेंडिचर। तो हम लोग तो आधे टाइम तो इस चीज से जूझ रहे होते हैं कि जो पीएमएस पोर्टल पे हमें खर्चा बुक करना है वो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही तो कहा। अभी वी वो आर मार्च, हैविंग द सिमिलर एक्सपीरियंस इन आवर ड्यू इटसेल्फ। हमारे तो कोलीग वगैरह हैं जो फाइनेंस हैं, वो भी इस बात की कंप्लेन करते हैं कि एक ही पेमेंट रिलीज करने में इतना टाइम लग जाता है, और कई बार तो पता चलता है कि मॉर्निंग में पूरा जो है दिन निकल गया और पोर्टल एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहा या परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कहने को तो हम 31 मार्च कह रहे हैं, बट यूजुअली इट इज वेरी हार्ड टू एक्सिक्यूट ऑल द ट्रांजेक्शन इन द लास्ट मोमेंट। तो ये तो सही बात है कि हमें शुरू में ही सारी चीजें क्लियर करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिल आते आते जो है बार बार रिमाइंड कराने के बाद भी आपको पता है कई सारी एडजस्टमेंट या बिल वगैरह जो लास्ट मोमेंट तक आती ही रहती हैं। लेकिन वही है कि इसका जो ड्रॉबैक वही है कि भाई 31 मार्च के बाद हमारा सारा जो है फंड वापस चला जाता है और हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते नेक्स्ट सेशन में भी। बिल्कुल सर। कोई और अपना कुछ एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना चाह रहा हो अब तक के सेशन के बारे में? कोई स्टोरी सुनाना चाहे कोई? संदीप जी, आपने अभी तक कोई स्टोरी नहीं सुनाई। सर प्रेजेंटेशन में तो सुना ही सर। एक और सुना दीजिए आज। सर अब स्टोरी क्या सुना है सर? कुछ भी जो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही हो। सर दूसरों से पूछ लीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए आज। अच्छा, सुखपाल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका प्रेजेंटेशन 7 को है। किसका? 7 मार्च का एक्चुअली हमारा जो प्रेजेंटेशन था ग्रुप में, 3 ग्रुप का तो हमारा हो गया था, और जो रिमेनिंग हमारे ग्रुप हैं उनका प्रेजेंटेशन में 6 को शेड्यूल किया था। तो एक्चुअली 6 को नहीं, वो एक्चुअली बताने में थोड़ा वो हो गया, वो 7 को है हमारा। कल जो है हमारा जो सेशन है वो ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर पे है। तो वही मैंने शुरू में अनाउंसमेंट किया था कि भाई हमारा जो ग्रुप प्रेजेंटेशन की जो डेट हमने आप लोगों से शेयर किया था कि 6 को है, वो 6 को ना होकर 7 को जो है आपका ग्रुप का शेयर प्रेजेंटेशन जो है वो होगा। तो हमारे 2-3 ग्रुप और रह गए हैं और 3 ग्रुप का हमारा प्रेजेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए देन वी विल टेक फॉर द 15 मिनट्स ब्रेक एंड देन वी विल रिज्यूम आवर लास्ट सेशन फॉर द टुडे। सर एक बात है सर, मनीष सर का जो पीपीटी है वो भेजिए हाँ, तो अच्छा होगा। वो हम मनीष सर से रिक्वेस्ट कर लेंगे, वो शेयर हाँ कर सर। देंगे हमारे पास, तो हम आपसे शेयर कर लेंगे उस पीपीटी। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। सर, हाँ जी, हाँ जी मैम। सर अभी जो फाइनेंशियल रूल्स आपने बताया ना सर, वो हाँ जी, हाँ पीपीटी जी। अगर हमको तो हाँ, अच्छा लगेगा सर। वो हमारे पास है, वो हम शेयर कर देंगे आपको। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो वी विल मीट आफ्टर 15 मिनट्स। है वो डॉक्टर शिवानी हैं, हमारे फैकल्टी ऑफ लॉ में जो है फैकल्टी मेंबर हैं, और मैडम को बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैडम ने अमेठी में और जो विप्स पीतमपुरा में है जो आईपी यूनिवर्सिटी का है, मेरे ख्याल से अगर जो दिल्ली के रेजिडेंट हैं तो अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है हमारा। और जो हमारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने पहले भी सेशन को अटेंड किया है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन मैम का रहता है। भाई आप लोग जान रहे हैं आजकल की भाई सेक्सुअल हेरासमेंट के केसेस या जो एक जेंडर बायसनेस या बिहेवियर, इस तरह से बहुत सारी रिलेटेड चीजें जो हैं वो ऑफिस में हो रही हैं। तो इसमें हम किन चीज़ों का ख्याल रखें, कैसे हम अपने आप को बचा कर रखें, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जो हमारे फीमेल एम्प्लॉई हैं, इन सब के बारे में एक डेप्थ जो है इंसाइट हमारे को इस सेशन के थ्रू मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को शुरू करें। आप यहाँ से 3 मिनट। ओवर टू यू शिवानी। मुझे वहां से पीपीटी दिख जाएगा? हाँ हाँ, वो सामने दिख जाएगा आपको। अच्छा, thank you sir for having me. So can we start the PPT?
ओके, तो टॉपिक आज के सेशन का होने वाला है जेंडर सेंसिटाइजेशन, जिसमें हम प्राइमरीली बात करेंगे कि हम इस तरह से सेंसिटाइज करें अपने आसपास के लोगों को, एम्प्लॉयज को, स्टूडेंट्स को, कि हम सेक्सुअल हरासमेंट को रोक पाएं जो कैंपस में होती है, या अगर हम म्यूट कर सकते हैं हम, हाँ जी। तो मकसद ये है बेसिकली कि हम जेंडर सेंसिटाइजेशन के थ्रू रोकना चाहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट को होने से। इसी टॉपिक पे हम थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से ये जानना जरूरी है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन हमको करना क्यों है। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? मैं कर सकती हूँ उसको आगे, अगर हो सकता है तो वो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। माउस में रख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ हो रहा है अभी इसमें। ये भी कर दूँ। ओके, तो जेंडर सेंसिटाइजेशन एक छोटा सा स्टेप है किस तरफ, इस दिशा में कि हम एक सेफ कैंपस और सेफ वर्क प्लेस दिल्ली यूनिवर्सिटी को बना पाए। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सेंसिटाइजेशन हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। सो द बेसिक आइडिया एज टू व्हाई वी सेंसिटाइज पीपल फॉर द जेंडर इज टू क्रिएट अ सोसाइटी दैट इज जस्ट, इक्वल एंड रिस्पेक्टफुल, where all the genders can live and grow in a dignified manner without any fear of discrimination. So हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जहां पे सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, सब रिस्पेक्टफुल तरीके से को सरवाइव कर पाए, और जहां पर किसी भी तरह का भेदभाव ना होता हो। तो ये वजह है, इस कारण से हमको जेंडर सेंसिटाइजेशन की जरूरत पड़ती है। ओके, अब यहां से जरा सोचना शुरू करते हैं। आप लोग एक बार जरा इस स्लाइड को देख लीजिए और मुझे बताइए कि आपके दिमाग में क्या आता है। आई एम श्योर बहुत सारे, आई एम नॉट 100% श्योर कितने फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं और कितने मेल पार्टिसिपेंट्स हैं, बट आई एम एज्यूमिंग दैट वी हैव कलेक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ पार्टिसिपेंट्स हियर विद अस। सो जब हम इसको पढ़ते हैं तो आई एम श्योर कुछ हमारी फीमेल पार्टिसिपेंट्स जरूर रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, हमारे साथ ऐसा हुआ है, जहां पे हमारे कलीग्स कई बार हमसे पूछते हैं कि चलिए चाय पीने चलते हैं। आप उनको मना करते हैं कि नहीं, अभी नहीं जाना हमें आपके साथ, whether you are not comfortable or you don't want to go with them. So these kind of advances, these kind of conversations are very common in the office spaces to happen, जहां पे there is someone who is trying to crack a conversation, someone who is trying to come close to you in one way or the other. एक ये सबसे इजी एग्जाम्पल है और सबसे ज्यादा होने वाला एग्जाम्पल है। अभी मैं इसी एग्जाम्पल को आपको इलैबोरेट करके बताऊंगी कि इस एग्जाम्पल के क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पहले सिचुएशन समझ लेते हैं दो तीन। एक ये सिचुएशन है जो बहुत ही अगेन एक रिलेटेबल सिचुएशन है, जहां पे एक मेल बॉस अपनी फीमेल कलीग को कह रहे हैं कि एक मीटिंग में अभी मैं बिजी हूँ, उस मीटिंग के बाद मैं फोन करता हूँ तुमको या डिस्कस करता हूँ तुम्हारे साथ, हम एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं अगले महीने, उसके बारे में बात करनी है। नाउ दिस फीमेल कलीग रिप्लाइज कि बट सर इट्स 7 PM ऑलरेडी एंड ऑफिस आवर्स आर ओवर, तो अब अगर आप मीटिंग के बाद मुझसे बात करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी लेट। तो अब इस पे रिएक्शन ये है दैट इफ आई कैन वर्क लेट यू कैन टू, एंड लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट योर प्रमोशन नेक्स्ट वीक इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग। So the female colleague says, sir, my only constraint was time. मैं काम करने से मना नहीं कर रही हूँ, मैं लेट नाइट तक रुक कर काम करने से मना कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो बॉस है वो कह रहे हैं श्योर आई अंडरस्टैंड, बट फिर क्या होता है, फिर ये होता है नेक्स्ट डे व्हेन दिस कलीग कम्स, ये कह रही है कि मेरा ऑफिस स्पेस या मेरा वर्क स्टेशन आपने उठा के गार्ड के बगल में क्यों कर दिया है, वहां पे तो एसी भी नहीं चलता। तो ऑफिसर ये कह रहा है कि मैडम यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो लेट नाइट तक लंबे समय तक काम करते हैं, उनको कंफर्टेबल जगह देना ज्यादा जरूरी है, आपका क्या है, आप तो बहुत जल्दी चली जाती हैं। सो दिस लेडी इज सेइंग कि नहीं, मैं जल्दी नहीं जाती हूँ, मैं सिर्फ ऑफिस टाइमिंग्स के बाद चली जाती हूँ, मैं लेट नहीं रुकती हूँ। सो ऑल दीज सिचुएशंस आर द सिचुएशंस जो बहुत कॉमनली होती हैं हमारे चारों तरफ, और हमको नहीं पता कि ये क्वेश्चनेबल है या ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको हमें सहना पड़ेगा, एंड वी कैन नॉट क्वेश्चन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। ऐसे ही थोड़ा सा और समझते हैं पहले दो चार सिचुएशंस, ताकि आप रिलेट कर पाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। देन देर इज अनदर सिचुएशन जहां पे एक आदमी है, वो ये सजेस्ट कर रहा है कि एक सोनी मैडम है, उनको कहते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, शी इज वेरी गुड। जिसपे बॉस रिप्लाई करता है नहीं नहीं, फैकल्टी जो फीमेल फैकल्टी है ना, उनको मेन्यू डिसाइड करने दो और डेकोरेशन देखने दो इवेंट की, एक कुमार सर हैं,
उनको कहते हैं प्रेजेंटेशन, वो प्रिपेयर कर लेंगे. ओके, so this is basically a gender stereotype where a female is being judged only as a decoration piece, only someone who is suitable to decide the menu, wherein a male colleague is considered to be more efficient and he is suitable to give the presentation, which is work related काम basically. Then read this. So हम सबको पता है जस्टिस हीमा कोहली अभी रिटायर हुई एंड शी वाज सुप्रीम कोर्ट जज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो जो अबला नारी वाली हमारी सिचुएशन है. आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट एम्पावर्ड वुमन कौन हो सकती है. एक सुप्रीम कोर्ट से जज से ज्यादा एम्पावर्ड औरत कौन होगी. एंड शी इज सेइंग कि जब कोर्ट के फंक्शंस होते थे तो मुझे कहा जाता था कि आप मेन्यू डिसाइड कीजिए. व्हाई? बिकॉज आई वाज द फीमेल. Understanding my point? So that is the kind of mentality even the empowered and those women who are placed on the highest possible positions, they are dealing with. Now read this. This is another eye opener जहां पर एक जज है जो ओपन कोर्ट में सबके सामने एक मेल वकील से ये पूछता है कि you can't simply sit and write because paper is available, not clear what he meant. He will go home to jail for 3 years. You understand that? तो मेल लॉयर कहता है जी मैं समझ रहा हूं, आई अंडरस्टैंड दैट. तो जज उससे दूसरा क्वेश्चन पूछता है, वेयर इज द बुक्स ऑफ अकाउंट, आर यू इनकम टैक्स असेसी. तो एक क्वेश्चन है जज ने जो कि एक मेल वकील से पूछा और उस मेल वकील को एसोसिएट कर रही थी एक फीमेल लॉयर. तो बाय चांस फीमेल लॉयर को उसका जवाब आता था क्वेश्चन का. एंड दिस इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस. इफ टू ऑफ द एडवोकेट्स आर रिप्रेजेंटिंग अ पार्टी, both the advocates can coordinate an answer. So this lady lawyer, she replied, yes, he is an income tax assessee. अब आप सुनिए जज का जवाब. जज कहता है, wait अम्मा, why are you telling the answer? You know everything about it. आप उसके बारे में सब जानती हैं. So tomorrow morning you will tell which color undergarment he wears. Now you understand, is this the kind of language a judge is supposed to use in the open court, that too against a female? Okay, and this case, this particular part of the court hearing was highlighted in the court also. तो जब हम ऐसी चीजें अपने आसपास होते देखते हैं, and I'm sure most of the participants must by now related to one or the other situation around us, तो जब ऐसी चीजें इतनी पॉलिश्ड, इतनी हायर क्लास एम्पावर्ड विमेन के साथ हो रही हैं, तो हमारे आपके साथ तो होनी बहुत जायज है और होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है. सो ये सारे सिचुएशंस हमको वजह देती हैं कि हम डिस्कस करें कि जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए. जेंडर सेंसिटाइजेशन एक बहुत जरूरी चीज है और लोगों को समझ आना चाहिए कि वो फीमेल्स को या अपने आसपास के किसी भी जेंडर को स्टीरियोटिपिकली जज नहीं कर सकते, उनके प्राइवेट दायरे में या स्फीयर में एंटर नहीं हो सकते, उसको हेल्दी फ्लर्ट कह के या उसको ओपन माइंडेडनेस कह के, या हम तो मेट्रो सिटी में रहते हैं, हमारा तो कल्चर ऐसा है, हम उसको किसी भी एक्सक्यूज से जस्टिफाई नहीं कर सकते. सो दिस इज द रीजन दैट वी नीड जेंडर सेंसिटाइजेशन. We need to understand that what are the normal behaviors, and we also need to sensitize ourselves that there are certain behaviors which we need to question, जिनको हमें सुधारने की जरूरत है. गलती किसी की नहीं है, गलती उस पेट्रियार्कल सोसाइटी की है जिसमें हमारी अपब्रिंगिंग हुई है. और वो अपब्रिंगिंग शायद वजह है कि बहुत सारे बिहेवियर्स को हम नॉर्मल ले लेते हैं और ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि वो बिहेवियर शायद सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं. अब थैंक्स टू द लॉ वी हैव एम्पल ऑफ द लीगल प्रोविजंस, जहां पर अगर हम समझेंगे नहीं कि हमारे बिहेवियर की जिम्मेदारी हमारी है और अगर उससे अगला इंसान अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आपको उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं. तो इसलिए अब हमारे पास बहुत सारे लॉज मौजूद हैं. इफ यू आर नॉट सेंसिटाइज्ड इनफ, यू विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस. There are penal provisions, there are deterring provisions, there are laws which are very, very, very stringent. So we need to understand and correct our behaviors accordingly. So I hope this gives us a very good reason to listen to me very carefully. अभी के बाद वाले स्लाइड्स को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि इसमें से कैसी कैसी चीजें हैं जो शायद इंटेंशनली नहीं पर हमारी पर्सनालिटी का पार्ट हो चुकी हैं. हम बहुत नॉर्मल बिहेवियर की तरह उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं और अब शायद हम एक इंट्रोस्पेक्ट करें अपने बिहेवियर्स को और उसको सुधारें. उसी के लिए हम जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स अपने करते हैं.
सो जेंडर सेंसिटाइजेशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को हम दो डायमेंशन से समझते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हम सबको पता है एक एजुकेशन कैंपस है। ऑब्वियसली यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और हम सब लोगों के लिए, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस इज राइट, हम सब लोग यहाँ के एम्प्लॉयज हैं। तो हमारे लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्क प्लेस है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी दो तरह से फंक्शन करता है या दो डायमेंशंस में जेंडर सेंसिटाइजेशन पर काम करता है। एक डायमेंशन है कैंपस की तरह से फॉर स्टूडेंट्स हम क्या क्या करते हैं, एंड वर्क प्लेस की तरह से फॉर एम्प्लॉयज हम क्या क्या करते हैं। सो सबसे पहले तो द आइडिया इज टू कॉम्बैट द रॉन्गफुल बिहेवियर, गलत बिहेवियर से लड़ना इज द कोर आइडिया ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन। उसके लिए अगेन एक 3 स्टेप्स की हमारा मैकेनिज्म रहता है कॉम्बैट करने का। हम प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, एंड ऑल्सो वी टॉक अबाउट रिड्रेसल। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ना ही हो सेक्सुअल हरासमेंट, फिर हम कोशिश करेंगे कि अगर किसी के साथ हो रहा है तो हम उसको प्रोटेक्ट कर लें, और फिर हम ऑल्सो विल ट्राई दैट वी नीड टू वी नीड टू गिव अ रिड्रेसल ऑल्सो, एंड दिस रिड्रेसल इज नॉट थ्रू कोर्ट, this redressal is not through the police agencies, this redressal is an in-house redressal जो कि यूनिवर्सिटी में as a workplace within the workplace provide किया जाता है to the aggrieved parties. And the first step towards all of that is to understand the normal and wrongful behaviors. ये समझना बहुत जरूरी है कौन सा behavior सही है और कौन सा behavior गलत है, तभी हम गलत को रोक पाएंगे और सही वाले को promote कर पाएंगे। So सबसे पहले let's understand the legal structure which we have for gender sensitization. So we all know, अगर नहीं भी पता है तो I'll give you a quick story behind the law. So भवरी देवी एक फीमेल होती थी, उनका एक केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वहां से हमारे सेक्सुअल हरासमेंट लॉज इवॉल्व हुए हैं। What is the case of भवरी देवी? राजस्थान सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोजेक्ट का नाम था साथिन। उसमें उन्होंने कुछ लोकल औरतों को रिक्रूट किया था इन ऑर्डर टू क्रिएट अ नेटवर्क, and this network was accountable for reporting child marriages in their localities so that police can intervene and stop those child marriages. So एक औरत थी भवरी देवी जो जिन्होंने अपने एरिया में होने वाले एक चाइल्ड मैरिज को रिपोर्ट किया और पुलिस ने उस चाइल्ड मैरिज को रोक दिया। अब जिस घर की वो शादी थी उस घर के और उस कम्युनिटी के लोग काफी एजिटेटेड हो गए और उन्होंने कैसे बदला लिया, दे ऑल गैंग रेप्ड भवरी देवी। And it was after this incident that the matter was taken up by an NGO Vishakha and the matter was taken to the Supreme Court. Now Supreme Court said कि ये तो बहुत ही impossible हो जाएगा औरतों के लिए काम करना, and economic independence is very important for women. So if we want economic independence for our women, we need to make them come out and work. जब वो काम करेंगी तो उनकी economic independence create होगी। अब वो काम करेंगी तो अगर उनके साथ भवरी देवी वाले इंसिडेंट होते रहते हैं और जरा सा गुस्सा आया और किसी ने भी रेप कर दिया इन द वर्क प्लेस, then it is going to demotivate the women. No woman is going to come out and work if this continues to happen. So that is the reason that Supreme Court told the central government कि एक लॉ बनाइए और एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबल बनाइए कि अगर कोई एम्प्लॉयर 10 या 10 से ज्यादा फीमेल्स को अपने यहाँ एम्प्लॉय करता है तो एम्प्लॉयर उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। Okay, so employer basically is accountable for providing the safety against sexual harassment to all the women employee. तो यहाँ से हमको मिला एक सेंट्रल लेजिस्लेशन जिसको हम बोलते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट या पॉश एक्ट ऑफ 2013 which protects the women from sexual harassment in workplace. सेक्सुअल हरासमेंट का लॉ पहले भी होता था पर उसके लिए आपको FIR करनी पड़ती थी, पुलिस के पास जाना पड़ता था, फिर कोर्ट में केस लड़ना पड़ता था, वकील हायर करना पड़ता था। अब ये वाला जो है ये वाला बहुत आसान है, ये एक इनफॉर्मल तरीके का लॉ है जहां पे आप अपने ऑफिस में ही अपने ग्रीवेंस का रिड्रेसल पा सकते हैं। ना आपको वकील की जरूरत है अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए, nor you need to go to the police station and file a case in the court. It's a very easy, informal, in-house process which is provided in your POSH. इसी POSH के एक्सटेंशन में UGC ने एक रेगुलेशन लाई 2015 में, and this regulation specifically apply in higher educational institutes.
अब ये एक स्पेसिफिक रेगुलेशन है जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर अप्लाई होती है, और क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो हमारे लिए ये रेगुलेशन जीरो डाउन हो जाती है कि दिस इज वन रेगुलेशन विच अप्लाइज इन द कॉलेजेस, इन द फैकल्टी, इन द डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसी रेगुलेशन पे हम अब के बाद फोकस करने वाले हैं। तो ये नाम है आपके रेगुलेशन का, इट इज University Grants Commission Prevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment of Women Employees and Students in Higher Education Institutions Regulation of 2015। ये मैंने इसलिए इस तरह से लिखा है बिकॉज आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि हमें नाम से ही बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की रेगुलेशन है, तो सारे कॉलेजेस या सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी ये उन पर अप्लाई होता है। देन दिस रेगुलेशन टॉक्स अबाउट 3 डायमेंशनल अप्रोच, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई है। ये प्रिवेंशन की बात करती है, प्रोहिबिशन की बात करती है और रिड्रेसल की बात करती है। किस चीज के? सेक्सुअल हरासमेंट के। सेक्सुअल हरासमेंट क्या है ये हम अभी समझेंगे। ऑफ किस किस के सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने की बात होती है? ऑफ वुमेन एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट। नाउ यहां पर आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन। जब मैं कहती हूं विमेन एम्प्लॉय, ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड विमेन एम्प्लॉय का मतलब क्या है कि ये जो प्रोटेक्शन अवेलेबल है ये सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज को अवेलेबल है, ओनली विमेन एम्प्लॉयज। पर जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उसके आगे विमेन स्टूडेंट्स नहीं है, फीमेल स्टूडेंट्स नहीं है। स्टूडेंट्स एक ओपन एंडेड वर्ड इन्होंने छोड़ दिया है एंड स्टूडेंट इज एन ए जेंडर वर्ड। तो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है वो विमेन एम्प्लॉयज को मिलती है, पर स्टूडेंट हर तरह का हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। तो कौन कौन यहाँ पर इस रेगुलेशन से गवर्न होता है? मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट एंड ओनली विमेन एम्प्लॉयज। कहाँ के? इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। सो दिस इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रेगुलेशन पर्टिकुलरली। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये रेगुलेशन में जब मैं कहती हूँ आपको कि अच्छा डीयू पे ये रेगुलेशन अप्लाई होती है, तो पहले ये तो पता चले कि डीयू का मतलब है क्या। स्टूडेंट्स के लिए डीयू कैंपस है, एम्प्लॉयज के लिए डीयू वर्क प्लेस है, पर कैंपस का दायरा कहाँ तक है, वर्क प्लेस का मतलब क्या है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रेगुलेशन इटसेल्फ एक्सप्लेन्स कि कैंपस क्या है। हमारे दिमाग में जो सबसे पहली इमेज आती है कैंपस की वो आती है कि ये जो बाउंड्री वॉल है ना मेरे कॉलेज के चारों तरफ, ये इस कॉलेज का कैंपस है। लेकिन कैंपस की डेफिनेशन उससे ज्यादा वाइड है। कैंपस सिर्फ जियोग्राफिकल नहीं है। कैंपस, अगर मैं आज ऑनलाइन क्लास ले रही हूं तो वो ऑनलाइन पोर्टल भी कैंपस बन गया है। अगर मैं अपने बच्चों को कोर्ट लेके जा रही हूँ, कोर्ट प्रोसीडिंग दिखाने के लिए, एंड वी डू दैट अ लॉट बिकॉज आई बिलोंग टू लॉ फैकल्टी, सो वी टेक आवर स्टूडेंट्स टू कोर्ट्स। तो जब वो 1 घंटे के लिए उस कोर्ट की हियरिंग देख रहा है बच्चा, तो वो कोर्ट की हियरिंग देखते समय दैट कोर्ट रूम ऑल्सो बिकम्स अ कैंपस, because that activity is affiliated to campus वाली educational activity। अगर हम कोई बस कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं, that transportation also becomes part of the campus। उसके अलावा अगर कोई कैंटीन है, अगर आप कहीं फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं, अगर कोई बैंक है, कोई हेल्थ सेंटर है, सॉरी, ऑल ऑफ दैट कम्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ कैंपस। तो ये बहुत जरूरी है समझना। कई बार हमको लगता है कि नहीं कैंपस में तो नहीं हुआ ना, बाहर हुआ है। नहीं, आप क्लियरली समझिए कि कैंपस एक वाइडर मीनिंग लेकर यहाँ पर रखा गया है। कैंपस का मतलब कॉलेज की चार दीवारी या डिपार्टमेंट की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। सिमिलरली जब हम वर्क प्लेस की बात करते हैं तो ये कैंपस को तो इंक्लूड करता ही है, उसके साथ साथ ये डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड करता है, स्पोर्ट इंस्टीट्यूट्स को इंक्लूड करता है, जिसमें आपका स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। या अगर आप मीटिंग्स के लिए कहीं जा रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, इन कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉय, अपनी पर्सनल मीटिंग्स के लिए नहीं, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो वो जो प्लेस है जिसको आप उस मीटिंग के लिए विजिट करते हैं
वो भी आपका वर्क प्लेस बन जाता है। तो कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, आईसीसी कैसे इस मैटर का कॉग्निजेंस ले लेगी, ये तो वहां हुआ है, दिल्ली में तो मैं था ही नहीं, हम लोग तो मीटिंग के लिए लेट्स से सूरत गए हुए थे, वहां हुआ है, हम लोग तो रिफ्रेशर कोर्स के लिए यहाँ गए हुए थे, ये वहां हुआ है। तो अगर आप इन कैपेसिटी ऑफ डीयू एम्प्लॉय कोई कोर्स करने भी जाते हैं कहीं और, तो उस समय वो प्लेस आपके लिए वर्क प्लेस में काउंट होता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब क्या है। अगर आप देखेंगे मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें लाल किए हैं, उन पॉइंट्स को मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाह रही थी। सेक्सुअल हरासमेंट एक अनवांटेड कंडक्ट है। ओके हम कहीं पर भी ये ध्यान में रखिएगा पूरे समय दैट आईसीसी or any legal agency for that matter is not into moral policing. No one can interfere into two consenting adults ka business. If there are adults and they are doing something with consent, there is no third party जो उसको question कर सकती है। प्रॉब्लम कहां पर आती है, जब वो अनवांटेड कंडक्ट है, जब एक पार्टी कुछ कर रही है और दूसरी पार्टी उसके लिए कंसेंट नहीं दे रही है। तो सेक्सुअल हरासमेंट में वो सारी चीजें आती हैं जहां पे एक सटल भी सेक्सुअल अंडरटोन होगा। जरूरी नहीं है कि वो बहुत लाउड या बहुत क्लियरली एक सेक्सुअल एक्ट हो। एक सटल अंडरटोन ऑफ सेक्सुअल नेचर इफ प्रेजेंट, इट इज इनफ टू कॉल अ मैटर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। अनवांटेड होना चाहिए और दूसरी पार्टी उसको अनवेलकम करे, दूसरी पार्टी उसको पसंद ना कर रही हो, उसका स्वागत ना कर रही हो, उसको विलिंगली एक्सेप्ट ना कर रही हो, then only that conduct can be called as sexual harassment. तो जब आप पहली क्लॉजेस पढ़ेंगे आपको बहुत डायरेक्ट इंसिडेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट लिखे हुए मिलेंगे, जिसमें हम मानते हैं अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट। डेफिनेटली अगर आप डायरेक्टली फिजिकल वर्बल कंडक्ट कर रहे हैं जो सेक्सुअल नेचर का है, वो सेक्सुअल हरासमेंट कहलाता है। उसके बाद डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर्स, again sexual harassment. Making sexually colored remarks, sexual harassment. Physical contact and advances, showing pornography, all of that is direct sexual harassment. उसके बाद आता है circumstantial sexual harassment, जहां पर आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे होते पर ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे होते हैं कि दूसरे के लिए डिफिकल्ट हो रहा होता है काम करना, और उस परिस्थिति को पैदा करने के पीछे देयर इज सम हिडन सेक्सुअल अंडरटोन, then that situation in itself is also called sexual harassment. जिसमें क्या है कि वो जो हमने सबसे पहला एग्जांपल दिया था कि आप कॉफी पीने चलेंगी मेरे साथ, आपने कहा नहीं, अगले दिन से उस इंसान ने आपको प्रोजेक्ट्स देने बंद कर दिए, या उस बॉस ने बोला कि आप प्लीज ऑफिस आवर्स के बाद रुकिए, लेट नाइट मुझे आपके साथ एक मीटिंग करनी है, और आपने कहा नहीं मेरे को मीटिंग नहीं करनी ऑफिस आवर्स के बाद, और अगले दिन आपका वर्क स्टेशन गार्ड के वर्क स्टेशन के बगल में कर दिया गया एंड यू डोंट हैव एसी देयर। So this basically is having a background story which is sexual in nature, although बहुत subtle है पर है, and then there is a circumstance which is making it difficult for you and creating a harassment situation for you. That also is called harassment, sexual harassment. Okay, तो अगर इस पूरी sexual harassment को मैं sum up करती हूँ तो दो तीन चीजें हैं जो निकल के आती हैं। ये देखिए राइट हैंड साइड कॉर्नर पे है, सेक्सुअल हरासमेंट एक बिहेवियर है जो कि अनवेलकम्ड है, सेक्सुअल है नेचर में, एंड एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जहां पर इंटेंट मैटर नहीं करता, इम्पैक्ट मैटर करता है। ठीक है, बिहेवियर हम सबको समझ में आ गया होगा, अनवेलकम्ड यस हम सबको समझ में आ गया होगा, जिसको दूसरा एंटरटेन नहीं करना, दूसरे को वो बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा। सेक्सुअल इन नेचर हम सबको समझ में आ गया होगा। इसको फिर भी एक बार मैं एम्फेसाइज कर दूंगी, जब हम बोलते हैं सेक्सुअल इन नेचर, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू आवर माइंड्स इज सेक्सुअल इंटीमेसी or sexual advances which are physical in nature, which are very outspoken and loud, जो जिनको हम direct sexual advances या direct sexual tries to create an intimacy बोलते हैं। यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटा सा सेक्सुअल सटल अंडरटोन भी उस मैटर को सेक्सुअल हरासमेंट का मैटर बना सकता है। जरूरी नहीं कि आपने किसी को टच ही किया हो, जरूरी नहीं कि आपने किसी को फिजिकली ही वायलेट किया हो। अगर आप किसी को सेक्सुअली हरास करते हैं तो एक व्हाट्सएप टेक्स्ट इज इनफ टू कॉल इट अ मैटर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ओके, अब लास्ट वाला,
नॉट द इंटेंट बट इम्पैक्ट मैटर्स। कई बार हम अपने ही एक एजम्पशन में चल रहे होते हैं कि अरे आजकल की लड़कियों के लिए तो ये बहुत कॉमन है, ओके और हम अब बिहेव करने लगते हैं ये एज्यूम करके कि क्योंकि ज्यादातर लड़कियों के लिए ये कॉमन है तो शायद इसके लिए भी होगा। एंड वी डोंट हैव दैट कल्चर इन इंडिया जहां यू आस्क, जहां यू टेक परमिशन, यू डोंट एज्यूम। हम अभी भी बहुत सारी चीजें एज्यूम कर लेते हैं इस हद तक कि जब अगला कहता है कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद तो हम ये कहते हैं अरे कौन से गांव से आए हो, आजकल तो ये चलता है, हेल्दी फ्लर्ट है, इतना क्या तुमको हर चीज से प्रॉब्लम होती है। तो ये जो इतना क्या तुमको हर चीज से प्रॉब्लम होती है वाला कॉन्टेक्स्ट है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो ये फैक्ट मैटर करता है, आपने किस इंटेंशन से क्या बात बोली है वो मैटर नहीं करता। इफ इट इज लेट्स से आई एम देयर, I have an absolute freedom to decide my periphery. मेरा दायरा मैं डिसाइड करूंगी, मुझे किससे हैंडशेक करना है किससे नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी। आप नहीं कह सकते अरे आजकल तो फीमेल्स हैंडशेक करती हैं, इट्स वेरी कॉमन, आई डोंट वांट टू हैंडशेक। ओके अगर आप कहते हैं अरे आजकल तो सब दोस्त बाहर जाके चाय पीते हैं, आपको क्या दिक्कत है, आई डोंट वांट टू हैव टी विद माय मेल कलीग्स। सो वो दायरा मेरा कितना भी छोटा है पर वो मेरा दायरा है, अगर आप उसको तोड़ते हैं तो दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट। आपके एक्सक्यूजेस, आपके जस्टिफिकेशन, आपकी अपब्रिंगिंग, आपका खुले विचारों का होना इज समथिंग विच इज कंप्लीटली इररेलेवेंट हियर। So it is not the intent of the doer, but the impact of the aggrieved person. उसके ऊपर क्या impact आया है? It is important and relevant in the matters of sexual harassment. Okay. Then we have certain examples which I can read again. Mr. A to Mr. B. Mrs. C is always found around the boss. How low of her to please the boss for some petty favors. अब ये एक स्टेटमेंट है, ओके और ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, ये स्टेटमेंट सेक्सुअली वायलेट कर रही है किसी की इंटेग्रिटी को। अब आप बोले दिस इज माय ओपिनियन, अब आप बोले इट वाज अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, अब आप बोले आई वाज जस्ट हैविंग फन। So thank you so much. So all of this is part of your intention and what you thought, what your intention was, whether you were having fun or you were seriously assassinating somebody's character, ये बिल्कुल irrelevant है यहाँ पर। दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ so that you understand that it is not against males only। जब हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो ए जेंडर हो चुकी है वो बात। तो एक मेल स्टूडेंट लेट्स से एक एसओ है जो फीमेल है, तो अगर वो एसओ एक मेल स्टूडेंट को कुछ ऐसा बोल देती हैं तो द मेल स्टूडेंट कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द फीमेल एसओ आल्सो। So we all need to be very cautious in the kind of words we choose when we are talking to people, when we are talking to students, when we are talking to our colleagues also. जैसे एक प्रोफेसर है जो अपने स्टूडेंट को कहता है यू लुक वेरी चीप एंड वेरी ऑर्डिनरी, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए, नहीं तो इन अगली लुक्स के साथ ना आपका जीवन में कुछ नहीं होने वाला। Now, why are you talking about physical attributes of a person? Why are you talking about his body and the way he looks? This is clearly violating somebody's personal space. ओके अब आप बोले कि नहीं मैं तो गुस्से में ऐसे ही बोल रही थी, टीचर्स तो बोल देते हैं और बच्चा है लड़का है इतना क्या उसको ये टची हो रहा है इन चीजों में। नाउ दैट इज व्हाट इज इररेलेवेंट हियर। आई एम अगेन एम्फसाइजिंग ऑन वन पॉइंट, इंटेंशन मैटर नहीं करती, ये क्रिमिनल मैटर नहीं है। ओके क्रिमिनल मैटर्स में हम इंटेंशन देखते हैं, यहाँ पर हम नहीं जानेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा था, आपने कितनी प्योर इंटेंशन के साथ या कितने फन में वो चीज बोली। अगर अगले को वो सेक्सुअली हरासिंग लगी और अगले को लगा कि वो उसको वेलकम नहीं करता है, देन यू आर इन ट्रबल। ओके नाउ दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स, whistling, winking, giving labels to someone and WhatsApp. Okay, हम बोलते हैं कि अरे हम we are people who are in mid 40s or 50s and we don't know, हम उतने टेक सेवी है नहीं, हमको नहीं पता कौन सा इमोटिकन इन व्हाट्सएप या कौन सा इमोटिकन ऑन टेलीग्राम या इंस्टाग्राम, मुझे भी नहीं पता। ओके पर अगर मुझे नहीं पता तो मैं क्या प्रेफर करती हूँ कि मैं नहीं यूज कर रही, क्योंकि कल को अगर आप कोर्ट में जाएंगे और आप बोलेंगे अरे मुझे नहीं पता कि इसका एक सेक्सुअल कॉनोटेशन भी होता है, कोर्ट इज नॉट गोइंग टू टेक दैट एक्सक्यूज।
ओके, इफ यू आर यूजिंग एन इमोटिकन, उसका क्या मतलब है ये आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता है तो आप काइंडली उसको यूज मत कीजिए, क्योंकि बाद में आप ये नहीं कह सकते अरे ये नए बच्चों की चीजें हैं हमें नहीं पता. So these days, I'm telling you with my personal experience, these days, lot many cases are coming to the court and in ICC also and various ICs also, I'm sure, wherein people are using these emoticons and using some slangs in their texts, and those slangs, they are having entirely different meaning. मैं आपको बताती हूँ, अभी 2-3 महीने पहले मुझे पता चला कि वो ऐसे वाला जो हाथ जोड़ने वाला एक इमोटिकन होता है, हम उसको थैंक यू के लिए भेजते हैं, हम उसको गुड मॉर्निंग के लिए भेज देते हैं या नमस्ते के लिए भेज देते हैं. अभी रिसेंटली मेरे को पता चला दैट इज हाई फाइव एक्चुअली. वो ऐसे जैसे हम बच्चे करते हैं ना हाई फाइव, वो उसके लिए है, मुझे भी नहीं पता था. तो थैंकफुली कुछ गलत मतलब नहीं है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट देयर आर सर्टेन इमोटिकन्स व्हिच हैव अ सेक्सुअल एक्सप्लेनेशन, और अगर आप उनको यूज करते हैं और अगला ऑफेंड हो जाता है और आपके अगेंस्ट केस फाइल करता है, देन यू विल बी इन ट्रबल. और उसी में मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर एक इमोटिकन का मतलब शायद गलत नहीं है, कॉम्बिनेशंस में उनका मतलब कुछ का कुछ हो रहा है, तो till the time you don't understand the arena completely, kindly avoid using it. Then protection के लिए हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग DU बहुत सारे स्टेप्स उठाता है, जिसमें पहला है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, फिर हम सेंसिटाइज करते हैं, देन देयर इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द विक्टिम्स एंड देयर aggrieved parties, then protection and safety, then clearly condemn and detrimental attitude रखा जाता है in all the education institutes, no victim blaming and redressal. यहां से शुरू होता है आपका redressal. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर डिपार्टमेंट्स एंड फैकल्टी देयर इज एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, जिसको हम ICC बोलते हैं, और ये एक इन हाउस कोर्ट की तरह काम करती है. ओके, एग्जैक्टली कोर्ट वाली पावर्स इसके पास नहीं है, इसलिए हम इसको क्वासाई एडजुडिकेटरी बॉडी बोलते हैं. हाफ कोर्ट की तरह के इसके पास पावर्स होते हैं. तो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में कुछ मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जो प्रोफेसर लेवल की एक फीमेल एम्प्लॉय होती हैं DU से. उसके बाद एम्प्लॉय मेंबर्स होते हैं, जिसमें 2 टीचिंग मेंबर्स होते हैं, 2 नॉन टीचिंग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. उसके बाद अनबायस्ड रहे पूरी ICC, इसके लिए एक एक्सटर्नल मेंबर होता है जिसको इस सारे फील्ड में एक्सपीरियंस हो. उसके बाद हमारे यहाँ स्टूडेंट मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक PhD स्ट्रीम से आता है, एक अंडर ग्रेजुएट से आता है, एक पोस्ट ग्रेजुएट से आता है. तो 3 स्टूडेंट मेंबर्स होते हैं. हर मीटिंग में, हर हियरिंग में ये जो टोटल 9 लोग हैं, इनमें से हाफ या हाफ से ज्यादा का होना जरूरी होता है, नहीं तो उस दिन की मीटिंग आपकी इनवैलिड मानी जाती है when the quorum is not complete. Then this is again something which is very important for all of us to understand. ये procedural है, पर हमें बहुत जरूरी है ये जानना कि हमारे साथ अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट का मैटर होता है तो हम क्या कर सकते हैं. ओके, इतना ही दूसरी पार्टी के लिए भी ये जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल फ्रिवलस केसेस भी बहुत हम लोग सुन रहे हैं मीडिया कवरेज में भी. अभी अतुल सुभाष का हमने केस सुना. सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि कुछ फ्रिवलस केसेस भी आ जाते हैं. So awareness is very important to protect yourself as an aggrieved party also and as a wrongfully accused parties also. Okay, so who can file? कोई भी aggrieved women employee या कोई भी student, again कोई भी student, male, female, transgender, कोई भी स्टूडेंट जिसको लगता है कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, वो 3 महीने के अंदर अंदर IC को अपनी एक कंप्लेंट लिखित में दे सकता है. ओके, 3 महीने के अंदर अंदर. अगर वो इंसिडेंट जनवरी में हुआ है तो फरवरी मार्च के एंड तक आप दे दीजिए. अगर वो एक ऑनगोइंग हो रहा है कि आप रोज ऑफिस जा रहे हैं, आपके साथ रोज कुछ गलत हो रहा है, तो आखिरी बार जब वो हुआ है तब से हम 90 दिन काउंट करते हैं. यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन इन ICC. मैंने बिगिनिंग में ही आपको बोला कि ICC हमने क्यों बनाई है, ताकि आप कोर्ट के वो इंट्रिकेटेड प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन से बच सके. तो ICC का पूरा जो वर्किंग पैटर्न है वो इनफॉर्मल रहता है. आपको वकील की जरूरत नहीं है, आपको कंप्लेंट को लीगली ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं है. इनफॉर्मली आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ है, आप वो इंसिडेंट लिखिए, किसने किया है वो लिखिए, और अपनी समझ से हाथ से आप एक कंप्लेंट लिख कर दे सकते हैं, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंप्लेंट. ओके,
हाउ मेनी कॉपीज ऑफ दिस कंप्लेंट यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट? 6 कॉपीज आपको देनी होती हैं ओरिजिनली साइन करके इन द आईसीसी ऑफिस। आजकल हमारे यहाँ ऑनलाइन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, लास्ट में मैं आपको बता दूंगी। एक शी बॉक्स होता है, एक आईसीसी का ईमेल एड्रेस भी है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं टू सेंड योर कंप्लेंट। एक बार एक कंप्लेंट हमारे पास आ जाती है तो जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट होती है हम उसको 7 दिन के अंदर अंदर उस कंप्लेंट की एक कॉपी भेज देते हैं और उसको कहते हैं कि 10 दिन में अपना रिप्लाई भेजिए। अब रिस्पोंडेंट को, जिसको हम यहाँ एक्यूज कर रहे हैं, उसको भी वकील करने की जरूरत नहीं है, वो भी अपने आप हाथ से इनफॉर्मली अपने बचाव में जो कहना चाहता है ही कैन राइट एंड ही कैन सेंड द रिप्लाई टू आईसीसी। ओके, देन आईसीसी में हियरिंग होती है जिसमें हम दोनों पार्टीज को सुनते हैं। दोनों पार्टीज अपने अपनी बातों को प्रूव करने के लिए एविडेंसेस सबमिट करते हैं या विटनेसेस को बुला सकते हैं कि जो मैं कह रही हूँ मेरे साथ हुआ तो इस आदमी ने देखा, या ये लोग प्रेजेंट थे, ये लोग बता सकते हैं कि मैं सच बोल रही हूँ। तो विटनेसेस, एविडेंसेस वो सब गैदर किए जाते हैं और उसके बाद फाइनली आईसीसी अपनी प्रोसीडिंग शुरू करती है। ठीक है, और ये सारी प्रोसीडिंग की यूएसपी एक और भी है, that court might take a longer time to dispose of a petition, but this proceeding must end within the time period of 90 days. So once your complaint is admitted in ICC, the complaint is going to taken cognizance of, and the report is finalized within the time period of 90 days. 90 डेज के बाद अगर डिले होता है तो आईसीसी को लिखित में देना पड़ता है that why we could not finish the report within 90 days stipulated time period. ओके, तो 90 डेज के अंदर अंदर ये रिपोर्ट बन जाती है, ये रिकमेंडेशंस बन जाती हैं और आईसीसी लिख के अपनी फाइंडिंग्स दे देती है whether the party is found guilty or the party is not found guilty. उस रिकमेंडेशन को एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के पास भेजा जाता है और वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उस रिकमेंडेशन पर विद इन 30 डेज एक्शन ले लेती है। अब इसके अलावा आईसीसी में क्या हो सकता है? ये तो था वर्स्ट केस सिनेरियो जहां पर आपने किसी को गिल्टी फाइंड किया या आपने किसी को क्लीन चिट दे दी। उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आईसीसी करता है। कंसिलिएशन, कंसिलिएशन का मतलब है मिल बैठ के किसी चीज पे को सुलझा लेना। ओके, अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो कल्प्रिट है या जो एक्यूज्ड है वो तो डेफिनेटली जैसे ही फंसेगा वो चाहेगा कि मिलके बात करके सुलझा लेते हैं, है ना। तो इसलिए कंसिलिएशन इज only possible when the request of conciliation comes from the side of the complainant. Okay, neither ICC can initiate the process of conciliation nor the respondent can ask for the process of conciliation. The only possibility is कि complainant बोले कि मुझे इस मैटर को मिल बैठ बाट के सुलझा लेना है, and it is only and only on the request of the complainant that ICC can organize conciliation. So यहाँ पर अब आईसीसी क्या करता है? आईसीसी प्लेज अ रोल ऑफ मीडिएटर। दोनों पार्टीज को आईसीसी इज गोइंग टू ब्रिंग बोथ द पार्टीज ऑन टू द टेबल, both the parties are going to have a dialogue, they both are going to talk to each other, and if they reach at a settlement, that settlement is filed in ICC. फिर ICC उस पे अपना स्टैंप लगाता है कि दोनों पार्टीज ने कंसिलिएशन कर लिया, दोनों पार्टीज ने एक अग्रीमेंट कर लिया है और ये केस इसके आगे हम प्रोसीड नहीं कर रहे। ओके, सो अगेन कंसिलिएशन हमेशा कंप्लेनेंट की रिक्वेस्ट पर होता है। देन देयर इज अनदर प्रोविजन ऑफ इंटरिम रिड्रेसल। As I was telling you, the entire proceeding of ICC is going to take how many days? 90 days. Now 90 days is the time period of 3 months. और 3 महीने बहुत ज्यादा होते हैं अगर आपको सरवाइव करना पड़े उसी ऑफिस में जहां पर वो इंसान आपके जिस बगल में बैठ के काम कर रहा है जिसने आपके साथ हरासमेंट किया है। So sometimes those 90 days time period is further traumatizing for the complainant. So in such cases, if complainant request कि मुझे within these 90 days भी बीच में एक रिलीफ दे दीजिए, ओके, और आईसीसी को लगता है कि हाँ एक्चुअली इंटरिम रिलीफ दे देनी चाहिए, then there is a provision of interim redressal also, जहां पे ये होता है कि दोनों एम्प्लॉइज को एक दूसरे से अलग वर्क स्टेशन पे भेज दीजिए, एक एम्प्लॉय को कहीं और ट्रांसफर कर दीजिए फॉर टाइम बीइंग,
या फिर ये भी हो सकता है कि अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो रही तो कंप्लेनेंट को 90 दिन की छुट्टी दे दीजिए जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, ताकि उसका वो ट्रॉमेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ 90 डेज उसको और ट्रॉमा में ना जीना पड़े. So this interim redressal is another thing which ICC can give. Then there is compensation provision also. अगर कोई मेंटल ट्रॉमा हुआ है, ऐसे भी सिचुएशंस हुए हैं जहां पे कंप्लेनेंट को फिजिकली हार्म किया गया है और उसको मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर करना पड़ा, तो ऐसे केसेस में कॉम्पनसेशन देने का प्रोविजन भी है, जहां पे रिस्पोंडेंट अगर गिल्टी फाउंड होता है तो रिस्पोंडेंट को कहा जाता है पैसे देने के लिए to the aggrieved person for mental trauma, for health injuries, for medical expenses, etc. उसके बाद आते हैं पनिशमेंट पे. तो पनिशमेंट अगेन दो तरह के रिस्पोंडेंट हो सकते हैं. एक हो सकता है कि डीयू का कोई एम्प्लॉय है जिसने गलती की है, दूसरा हो सकता है कि डीयू का कोई स्टूडेंट है जिसने गलती की है. अगर एम्प्लॉय ने गलती की है तो सीसीएस रूल्स हैं हमारे, हम सबको पता है 1965 के, उनमें जो प्रोसेस ऑफ मिसकंडक्ट है और मिसकंडक्ट की जो पनिशमेंट है वो सारी पनिशमेंट्स उसको यहाँ पर भी रिकमेंड की जा सकती हैं. अगर कोई स्टूडेंट है जिसने इस तरह की गलती की है तो रेगुलेशन 10 में कुछ चीजें हैं, जो कुछ पनिशमेंट्स हैं जो एनलिस्टेड हैं. उसमें सबसे आसान वाली से शुरू करते हैं. ये कहा जा सकता है कि माफी मांग लीजिए, प्राइवेट में मांग लीजिए, नहीं तो पब्लिक में माफी मांग लीजिए, या डांट के धमकी देके छोड़ा जा सकता है कि दोबारा किया तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे. उसका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है, उससे उसकी लाइब्रेरी एक्सेस, उससे उसका हॉस्टल रूम वापस लिया जा सकता है. इसी तरह से जो एम्प्लॉयज हैं उनके कुछ एग्जांपल्स आपको दे देती हूँ. अपॉलजी अगेन सबसे आसान वाला है, टर्मिनेशन है, सस्पेंशन है, पेंशन बेनिफिट्स रोके गए हैं लोगों के. एंड एक्चुअली आई हैव सीन दिस हैपन टू मेनी ऑफ द पीपल कि उनका इंटायर करियर, इंटायर रेप्यूटेशन was made questionable and वो on the edge of retirement हैं जब उनके साथ इस तरह के केसेस होते हैं, क्योंकि पता ही नहीं बिहेव कैसे करना है. And these days, let me tell you, because of these kind of awareness programs, more and more women, they are aware. They are reaching out to ICC. So we as employees, irrespective of our gender, we are actually very, we need to be very vigilant कि हम किस तरह का behavior exercise करते हैं. And we need to understand this कि we are ultimately accountable for whatever words we are using, whatever behaviors we are reflecting. Every single word of yours has an implication, good or bad, and you are going to be accountable for that. उसके बाद अगर फ्रिवलस कंप्लेंट्स हुई है, अगर कोई भी एम्प्लॉय या स्टूडेंट ये फाइंड करता है आईसीसी कि कंप्लेंट एक मालाफाइड इंटेंशन के साथ फाइल की गई थी, एविडेंसेस गलत दिए गए हैं, तो ऐसे कंप्लेनेंट्स को भी पनिश किया जा सकता है. मिसकंडक्ट के केस चलाया जा सकता है सीसीएस रूल्स के तहत अगर एम्प्लॉय है, और अगर स्टूडेंट है तो पीछे जो हमने रेगुलेशन 10 की पनिशमेंट पढ़ी है, उन सारी पनिशमेंट्स में से कोई पनिशमेंट इस केस फाइल करने वाले को दी जा सकती हैं. These are some of the punishments which can be given. I have told you already. Apology है, एग्जिट करना है या निकाल देना जिसको हम बोलते हैं, सैलरी काटना है, पेंशन देने से मना कर देना, प्रमोशन नहीं देना, फायर कर देना, टर्मिनेट कर देना. To an extent that there are students जिनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट में मेंशन करके दिया गया है या लीविंग सर्टिफिकेट में टीसीज में बोला गया है that this is what you've done in past, so it is going to make your record questionable for all the times to come. So it is very important for us to behave in a proper way. Now, sir, you look so handsome in this white shirt. You should wear white more often. Okay? Done? अब I don't know whether I can interact with the participants or not. है ना? तो अब यहाँ तक हम मानेंगे इसको सेक्सुअल हरासमेंट की नहीं? कोई मुझे बताना चाहेगा? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट अगर कोई बोलना चाहे कुछ कि लग रहा है आपको कि जो फीमेल है इसने, the man is saying please stop. Do you think this is a valid case of sexual harassment? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट वॉइस आ रही है आप लोगों को?
मैडम अनम्यूट करिए मैडम। आ रही है आवाज अब आ रही है? अभी आ रही, अभी आ रही है। हाँ बताइए, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में? क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया था? मैडम ने जो पूछा था। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करूं मैं, अगर आपने क्वेश्चन नहीं सुना है तो? तो मैं ये हाँ। कह रही हूँ कि ये जो आपके सामने पिक्चर है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक फीमेल है जो एक मेल को कह रही है दैट यू लुक वेरी हैंडसम इन दिस वाइट शर्ट, यू शुड वेयर दिस वाइट मोर ऑफन। जिसमें मैंने ये भी स्टैब्लिश किया है दैट द मैन इज नॉट लाइकिंग इट, इज नॉट वेलकमिंग इट, ही इज क्लियरली सेइंग प्लीज स्टॉप। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप में से कितने लोग मानते हैं कि ये सेक्सुअल हरासमेंट का केस है? Yes, ma'am. It is a sexual harassment because in case of women, they are not supposed to make the comments. Similarly, we are not supposed to make comments against the male employee or students also. ओके, अब आते हैं यहाँ पर। वेरी गुड। नेक्स्ट इज द मैन इज सेइंग आई एम मैरिड एंड आई फील ऑकवर्ड, ऑल्सो द गर्ल्स विद गुड कैरेक्टर मस्ट नॉट इंडल्ज इन सच कॉन्वर्सेशंस विद मेन। ठीक है, अब ये जो आदमी है ये कह रहा है कि मैं आई एम मैरिड और मुझे इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स प्लीज मत दीजिए, और सही घरों की लड़कियां, अच्छे कैरेक्टर वाली लड़कियां इस तरह की बातें नहीं करते। ओके, और ये लड़की कह रही है कि मैं तो सिर्फ आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। ठीक है, आगे द गर्ल इन रिटर्न इज सेइंग कि आपने मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, तो आई विल गो एंड फाइल अ केस नाउ। डू यू थिंक इट्स अ केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट? No, ma'am. ओके, आगे No, ma'am. व्हाई? It is not acceptable. हो सकता है कि मुझे ये कह रहा है कि अच्छे घर की लड़कियां, अगर ये वर्ड यूज कर रहा है। एग्जैक्टली। सो अगर हम इसको केस को डिटेल से देखें तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं इसमें। मैं आपको शुरू से लेके चलती हूँ इस केस में। तो जब मैं कहती हूँ सर यू लुक सो हैंडसम, तो ये मैं मान के चल रही हूँ दैट लड़का जो है वो स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, और अगर लड़का स्टूडेंट नहीं है, ऑब्वियसली हम स्टूडेंट को सर नहीं बोलेंगे, तो अगर लड़का स्टूडेंट नहीं है तो मेल्स एम्प्लॉय के पास तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट है ना? तो हम जब एम्प्लॉयज की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन सिर्फ विमेन एम्प्लॉयज के पास है। तो जब ये फीमेल एम्प्लॉय एक मेल एम्प्लॉय को कहती है दैट यू आर लुकिंग नाइस इन वाइट शर्ट, the males cannot file a case of sexual harassment if they are employed. Only a male student can file. है ना? तो हम सबकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे थोड़ी सी छूट गई पीछे कि यहाँ पर एम्प्लॉय अगर मेल है तो उसके बेचारे के पास सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में कोई राइट नहीं है यूजीसी रेगुलेशंस में। ठीक है, अब उसने बेचारे ने, आप कितना भी सिंपैथाइज कर लीजिए, उसने बेचारे ने कहा कि ये सब मत बोलो, आई एम मैरिड, और वो फंस गया ये बोल के। नाउ द फीमेल हैज अ वैलिड रीजन टू रीच आईसीसी। ओके, सबको समझ आया? पार्टिसिपेंट्स, यू वांट टू से समथिंग? इवन इफ यू आर शॉक्ड कि अरे ये क्या हो गया, तो आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इसका मतलब मेल्स तो यहाँ पर भी एक डेट्रीमेंटल पोजिशन में है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब लॉ बना था तब उस समय का समाज, और जिस तरह से अभी भी हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और एम्पावर्ड पॉपुलेशन के बीच में काम कर रहे हैं, अवेयर्ड पॉपुलेशन के बीच में काम कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको काम पे जाते हुए डर लगता है, बिकॉज देयर आर मेन अराउंड हु आर लुकिंग टू गेट वन अपॉर्चुनिटी टू हरास दीज women, and hence many of the women they quit their jobs. तो ये जो लॉ है ये उस तरह की औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। The legislative intention is clearly very specific that protection is extended to women employees only, not to the male employees. And अगर मेल कोई है और स्टूडेंट है, only then he can seek for the protection. So all this we need to keep in our minds. Okay. उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल, अनदर एग्जाम्पल। अगेन आई वुड लाइक द पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज अनम्यूट देमसेल्व्स एंड आंसर। सो एक स्टूडेंट है, लड़की है जो आई है और बोल रही है सॉरी मैडम आई एम लेट बट लेट मी एंटर द एग्जामिनेशन हॉल।
तो यहाँ पर दो इन्विजिलेटर्स हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। तो मेल इन्विजिलेटर कह रहा है शी इज लेट फॉर एग्जाम बट शी हैड टाइम टू पुट ऑन मेकअप, एंड जो फीमेल एम्प्लॉय है वो कह रही है एंड लुक व्हाट शी इज वेयरिंग। ओके, this is a clear-cut case of sexual harassment, wherein both the invigilator, the male as well as the female, can be held guilty for the act of sexual harassment. तो एक female against female भी हो सकता है और female student against male भी हो सकता है. Okay? Do we understand this now? Okay, ma'am. Okay, this again is something which is all of us to understand. There are two images of real WhatsApp conversations wherein there are emoticons which are being used, there are languages which are being used. You can go through it and I'll give you 10-15 seconds to read the slide. Okay, I'm not going to read the entire chat. आप पढ़िए अपना टाइम लेके और एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे हम जो यूजुअल कॉन्वर्सेशंस में अपने स्माइली यूज कर लेते हैं या इमेजेस यूज कर लेते हैं, उन इमेजेस का अगर कोई डर्टी मीनिंग है, कोई डबल मीनिंग इमेज है, तो यू कैन एक्चुअली लैंड इनटू ट्रबल एंड देन यू कैन नॉट से दैट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ एनी ऑफ दीज इमेजेस के इनका ये मतलब भी होता है. ओके, एंड लेट मी टेल यू द रीसेंट ट्रेंड. Many of the cases which are being filed nowadays are about telegrams, are about the kind of language which is being used on those WhatsApp groups जो students बना लेते हैं या जो कई बार employees भी बना लेते हैं, जिसमें पता नहीं कौन से fun में late night images आ रही होती हैं या dirty jokes आ रहे होते हैं, and not everybody endorse those kinds of jokes, and then you cannot give an excuse कि अरे मैं तो मजे मजे में डाल रहा था, कोई serious नहीं था group में. You will actually end up in trouble, and आपके official WhatsApp groups are also considered to be the workplace. Let me remind you that. You cannot say that this is my private conversation. Okay, all those conversations are as good as we used to email के through communicate. Okay, तो जैसे हम email में बात करते थे officially, अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपकी WhatsApp is also having the same sort of sanctity. So WhatsApp conversations are also official and they can be considered as harassing. आगे नहीं जा रहे. Okay, so what are the takeaways? What are the corrections? What are the corrections which we can imbibe in our behavior after going through all of that? सबसे पहले मैंने highlight कर दिया बड़ा बड़ा, mind your own business. Unnecessarily जब तक आप 100% sure नहीं हैं, किसी को compliment भी मत कीजिए. अगर आप आज अपनी फीमेल कलीग को जाके बोलते हैं या बोलती भी हैं, if you are a female also, that madam you are looking very pretty today. ओके, आपने बड़ा रिस्पेक्टफुली बोला या जैसे भी बोला, अब आपका फ्यूचर इज इन द हैंड्स ऑफ दैट फीमेल. If she wants to not welcome this, if she wants to take this one statement of yours to ICC, she can actually do that. हो सकता है आपको माफी मांगने बोला जाए और आप सस्ते में छूट जाएं, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्रक्स ऑफ व्हाट आई एम सेइंग. सो एक जो टेक अवे है मेजर, वो ये है दैट डू नॉट इंडल्ज इनटू एनी सॉर्ट ऑफ पर्सनल कॉन्वर्सेशंस till the time you are not 100% sure that the other person is going to welcome your statement. Till that time, kindly be respectful and mind your own business. Okay? Use gender neutral language. अभी भी हमारा जो वोकैबुलरी है वो बहुत बढ़िया नहीं है, चाहे हम हिंदी में बात करें चाहे हम इंग्लिश में बात करें, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुत अच्छा मीनिंग नहीं होता. एग्जैक्टली तो एक सेंसिबल लैंग्वेज, एक जिसमें हम लेबल ना कर रहे हो किसी को, अरे ये तो औरतें ऐसे ही रोती रहती हैं, अरे ये तो बहुत औरतें छुट्टियां बड़ी लेती हैं, अरे इनके तो घरों के काम ही नहीं निमटते. All those kind of languages which we use stereotypically to demean a sex, that language we need to avoid. Create gender sensitive environment, promote gender equality in workplaces, do not assume, seek permission. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो
शायद हमें अपनी अपब्रिंगिंग का पार्ट बनाना चाहिए कि हम छोटे होते से बच्चों को बताएं कि पूछिए अगला किस चीज के लिए ओके है, अगले का किस चीज के लिए कंफर्टेबल है। एज्यूम मत कीजिए कि सब लोग ये करते हैं तो ये तो बहुत कॉमन है, शहरों में तो लड़कियां ऐसे करती हैं तो ये तो बहुत कॉमन है। डोंट एज्यूम, आस्क, सीक परमिशन, रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दूसरे का दायरा कितना भी छोटा है, कितना भी ब्रॉड है, उससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। जो भी उसकी बाउंड्रीज हैं उनको रिस्पेक्ट कीजिए, बी रिस्पेक्टफुल, प्रमोट कम्युनिकेशन, लेंड सपोर्ट। हमारे यहाँ ये भी बहुत ज्यादा होता है, लेंड सपोर्ट एंड अवॉइड विक्टिम ब्लेमिंग। अगर कोई कल को सेक्सुअल हरासमेंट का केस आईसीसी में फाइल करता है तो सबसे पहले ये सुनने को मिलता है कि मैडम डिपार्टमेंट में सब लोग कहने लगे हैं ये लड़की तो बड़ी तेज है, इससे बच के रहना चाहिए, इसने तो आईसीसी में केस फाइल कर दिया है। तो इंस्टेड ऑफ लेंडिंग सपोर्ट टू द विक्टिम्स, हम विक्टिम को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। अरे इससे तो डर लगता है, इसने तो आईसीसी में केस फाइल कर दिया था छोटी सी बात पे, इससे तो दूर ही रहते हैं। सो वी नीड टू बी सेंसिटिव इनफ एंड इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द विक्टिम्स वी मस्ट लेंड सपोर्ट टू द विक्टिम्स। अंडरस्टैंड अकाउंटेबिलिटी। आई हैव टोल्ड यू इनफ अबाउट अकाउंटेबिलिटी। जो भी आप करते हैं, जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप लिखते हैं, जैसा भी बिहेवियर आप दर्शाते हैं अपने वर्क प्लेस पे, ऑल ऑफ दैट बिहेवियर बिलोंग्स टू यू। उसमें आप ये नहीं कह सकते सोच के नहीं किया, जानकारी नहीं थी, ये सोचा, ये इंटेंशन थी। नो, it is completely and absolutely your accountability. So need to learn this, that I am responsible for all my behaviors, all my words, and I will have to bear the repercussions and consequences, good or bad. So I think with this we'll end it. As I told you earlier, this is where you can reach the internal complaints committee. There is a she box also. She box stand for sexual harassment e-box. Okay, I am the nodal officer of she box. आप नीचे में email address भी है nodal officer का, so you can file a complaint in the nodal officer's office or you can file the complaint in ICC. अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट या फैकल्टी में हैं तो कॉलेजेस की IC अलग रहती है। Okay, all of this information is available on the website of Delhi University also. You can go through that. And with this, I would like to end my presentation. And if you have any type of questions or queries, you're most welcome. Online participant, the session is open for the discussion. आप लोग अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है मैम से? Or it is clear to everyone? It's very clear, sir. ठीक है, तो कोई क्वेरी नहीं है किसी की भी? No, sir. No. So then, thank you Swani ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. आप आए और आपने मेरे ख्याल से